Very good evening, friends. Today we have the special privilege of having with us CA Vikas Rajvanshi ji. He is a fellow chartered accountant, law graduate, DISA, DRA, CAAT, IFRS, FAFP, insolvency professional. I had the privilege of listening to him in CIRC session, where I was also invited as a speaker on one of the topics. And his knowledge in the subject of SURFACE, RDDB, and its interplay with the IBC is tremendous. So that is why we thought it fit to invite him to our forum, and he gladly accepted our invitation. He was kind enough despite his busy schedule. Last week he was a bit busy with the representations in Jodhpur, Jaipur, etc. So we have the privilege now of listening to him. So it is all over to you, sir, Vikas Rajvanshi ji. Please. थैंक यू वेरी मच आर के गुप्ता जी और चुप साहब दोनों आप दोनों. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम गुप्ता जी कि इसमें इन दिस ग्रुप आई थिंक यू टोल्ड मी दैट सीए एंड सीएस प्रोफेशनल दे आर who are aspirant of insolvency professionals. Yes. All are preparing for limited insolvency examination. Yes, sir. So what I will be doing is this presentation I have made based on my experience, because since 2002 when this act was promulgated, that is the SURFACE Act, जिसको बोलते हैं SURFACE, कहीं SURFACIA, somebody says SURFACIA, SARFACE, but SURFACE means securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002. Yes. Why this act was promulgated? जैसे अभी IBC का अपन पढ़ते हैं 2016 में आ गया, overriding fact आ गया, सब कुछ आ गया, very powerful act. But when this act was promulgated, इसके बारे में भी सारी चीजें जो अभी IBC में अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये चीज already it was there in the 2002 act. बट इसमें क्या हुआ कि when this act was promulgated, ये क्यों हुआ वो भी मैं अभी आऊंगा आपके पास में, that I will be explaining. It is because of the आवाज भी क्लियर है, थोड़ी सी साउंड की आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है आवाज. Yes sir. Because of the slow pace of recovery of the banks, because internationally banking is being done. So in the foreign market, foreign players, the secured creditors, that is the bankers were able to recover their money themselves. But in India there were the courts, simple courts were there. Then RDDB Act was there, that is about DRT. Earlier, loan more than 10 lakh rupees, secured creditor like banks, they goes to DRT, otherwise court. तो कोर्ट का चक्कर था और DRT में भी चक्कर था. तो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट वाज इतना परेशान होते थे बैंकर्स, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिकवर देयर मनी. तो फर्स्ट टाइम जब ये सर्विसी एक्ट आया, मुझे अभी तो अच्छी तरह याद है, जब आया द शेयर्स ऑफ द बैंक्स was increased by 20-25% on the same day. ये बड़ा पावरफुल एक्ट बनाया कि it will the bank will be able to recover money themselves. There will be no intervention of the court. कोर्ट के पास जाना ही नहीं है, अपने को कोई बात ही नहीं करनी है. ऑथराइज्ड ऑफिसर, स्केल 4 ऑफिसर उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया रूल्स में कि he is empowered, he will be issuing notice, he will be taking possession, he will be entitled to auction the property, and he will be doing all the things for the recovery of the money. That I will be coming later about the DRT and DRAT and High Court, क्या उनका coordination रहता है, और how act was promulgated with the there was Supreme Court cases also. So I start with the SURFACE Act. SURFACE Act, the most important thing, SURFACE Act, Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. This is very practical act, and last 3 words, enforcement of security interest, are the key words and the key working of this act, because security interest जो रहता है ये इसको act में अपन देखेंगे, because act is very बहुत छोटा सा act है, it is very small act. और फटाफट आपको मैं अभी for examination point of view से भी मैं आपको all important section जो इसके हैं that I will be covering. So these securitization and reconstruction of financial assets are different. These are about the reconstruction companies, financial companies. So it is one part, and another part is enforcement of security interest, that start from section 30. So section
वन सेज अबाउट दी, ये एक्ट में कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वन इज इट इज अप्लाई होल इंडिया, मतलब इसमें जम्मू कश्मीर का चक्कर नहीं है। डीआरटी एक्ट में क्या फर्क है, उसमें जम्मू कश्मीर का उसको एक्सेप्ट करता है, थोड़ा सा एक फर्क ये बता देता हूँ आपको। इट अप्लाइज ऑल ओवर इंडिया वन में। टू में डेफिनेशन पार्ट है, तो डेफिनेशन पार्ट तो आप सब पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशंस आर इजी, 1 to A सबसेक्शन A B C D, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट की है दैट आई वुड बी टेकिंग। यस, सेक्शन 1 is apply whole out body, and important thing is in this SARFAESI Act, the SARFAESI Act starts from the NPA, word NPA. Unless and until account is NPA, SARFAESI Act will not start. The foundation stone is NPA. NPA भी कैसा होना चाहिए, because of the financial grounds. अपन जो बाद में अगर most of us is auditors, although chartered accountants भी हैं इसमें, we are doing auditing as per the RBI Act, और आरबीआई की जो मास्टर सर्कुलर, मास्टर गाइडलाइंस है, उसमें भी जो लिखा हुआ है 4.4 2.4 में, तो उसमें कई टेक्निकल ग्राउंड से भी अकाउंट एनपी हो जाता है, बिकॉज ऑफ दी जैसे रिन्यूअल और रिव्यूअल नहीं हुआ, उसका 6 महीने से ऊपर हो गया तो अकाउंट एनपी हो गया। शुरू में फाइनेंशियल वीकनेस थी और 31 तारीख में एनपी हो गया और बाद में वो पैसा जमा हो गया, लेकिन खाता एनपीओ पड़ा हुआ है। तो वो इसमें लिटिगेशन में भी चीजें क्लियर हुई है कि एनपीओ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे होना चाहिए, और इसमें एनपी होना बहुत जरूरी है, बेसिक फाउंडेशन। वेयरएज इन आईबीसी देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनपीए, दे आर गिविंग स्ट्रेस ऑन द डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में तो कुछ भी हो सकता है, एक इंस्टॉलमेंट भी डिफॉल्ट इंटरेस्ट का भी होगा या प्रिंसिपल का भी होगा, तो डिफॉल्ट में हो सकता है। तो उस वजह से आईबीसी जो ज्यादा इट्स वेरी, मतलब वो ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया। पर इनमें एनपीए में कम से कम अपन ने 90 डेज दिया उसको, उसके बाद में बैंक का जो पहले तो मैनुअल करते थे, तो बैंक इतनी जल्दी एनपीए करते नहीं थे, पर नाउ डेज अभी भी मैनुअली है। वैसे तो कहते तो ये है कि हम ऑनलाइन करते हैं, सिस्टम से बेस करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है अभी भी। दे आर स्टिल दे आर स्टैंपिंग, वो खुद ही छांटते हैं, बाद में पुटिंग ऑनलाइन या करके वो स्टैंपिंग करके करते हैं हम ये। तो दिस इज द वन डिफरेंस ऑफ द डिफॉल्ट। सेकंड वन इज व्हाट वाज द नीड। मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी कर दिया था इसको, इसके बारे में कि इसकी क्या नीड है, क्योंकि पुराना एक्ट है, इसमें ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और 2016 में एक जजमेंट आया, जब ये अपना आईबीसी का एक तो दिसंबर में पास हुआ, एक तरह से दिसंबर में चालू हुआ, जून में पास हो गया था नो डाउट, पर दिसंबर तक उसमें नोटिफिकेशन आते रहे। बट 2016 में भी एक ये पिगासस एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस हरियाणा कॉनकास्ट का डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी इसको कहा गया था कि SARFAESI एक्ट इज ए कंप्लीट कोड। जो वर्ड अपन कोड की बातें इसमें करते हैं कि आईबीसी कोड कहा गया, लेकिन ये बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी कि SARFAESI एक्ट इज itself is a complete code. An earlier judgment referred to context of the state financial institutions जो इसके हैं, SFC Act means जैसे like RFC, Rajasthan Financial Corporation, like pickup in UP pickup, SFC and DRT, वो उन पे एप्लीकेबल नहीं हो सकते, इन फोर्स ऑफ द SARFAESI Act पे इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते। इस तरह से इसको बड़ा पावरफुल एक्ट करते हुए इसको बताया गया था। अब मेन चीज मैंने आपको वैसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई दिस एक्ट वाज, व्हाई इट इज एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड, and that the secured creditors are recovered from the defaulting borrower without any obstruction, word है obstruction, and without intervention of the courts or tribunal। किसी भी का नहीं होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल का भी क्या इंटरवल है, वो सेक्शन 17 में, सेक्शन 18 में भी आऊंगा आपके पास में कि वो कब कर सकते हैं, किस स्टेज पे कर सकते हैं, किस सेक्शन में अपन करेंगे, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकलिटी लोगों को पता नहीं होती कि जैसे नोटिस खाता एनपीओ हो गया, नोटिस आ गया, तो लोग कई डीआरटी चले जाते हैं या करते हैं, तो वो प्रीमेच्योर होता है सेक्शन। उस पे जब तक पोजीशन का नोटिस नहीं आया 13(4) का, वो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। देन देयर इज ए स्टेज ऑफ क्या टाइम लिमिट में करना चाहिए, दैट आई वुड बी एक्सप्लेनिंग। तो दिस वाज द एम, एंड आई एम जस्ट शोइंग द फिगर्स ऑफ पोटेंशियलिटी फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस और प्रैक्टिसिंग पर्पस। कोई आदमी इसमें इस फील्ड में प्रैक्टिस भी करना चाहता है अगर, तो मैं एनपीए की फिगर आपको ये मैंने कंपाइल की है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटेड बैलेंस शीट moneycontrol.com में, और इनमें मिल जाती है। तो 2020 की बैलेंस शीट, और इसमें मैंने 4 साल का कंपैरिजन किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे अराउंड 70,000 करोड़ का एनपीए लेवल है, जिनको उनको रिजॉल्व करना है थ्रू कंसल्टेंट्स। बेसिकली व्हाट देयर बैंक आर डूइंग, बैंक आर अपॉइंटिंग कंसल्टेंट्स, दैट इज द एनफोर्समेंट कंसल्टेंट और रिकवरी कंसल्टेंट्स, जो ये काम करते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल्स पर्सन्स भी दे आर आल्सो स्टिल दे आर एंगेज, और अभी भी और भी एंगेज होकर के
प्रैक्टिस का इसमें अच्छा फील्ड बनता है। बैंक ऑफ इंडिया में अराउंड 61,000 करोड़, तो एसबीआई में काफी ज्यादा है इसमें, और सब तरह का मैंने एसबीआई में अराउंड 1.5 लाख करोड़ का एनपीए है। हालांकि इट हैज बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि कुछ बड़े अकाउंटों में उनकी रिकवरी आ गई, ऑलरेडी प्रोविजन पहले कर दिया था। तो ये एक कंपाइलेशन जस्ट एक फिगर के बेसिस पे, एंड दे आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट केस। मैं आपको ये कंपैरिजन दिखा रहा हूँ एसबीआई का। लाइक जो इस जो फाउंडेशन स्टोन है इन केसेस को भी अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं अभी कर देता हूँ, लेटर ऑन तो आप इसको आपके उसको आप पढ़े भी किया कि जब ये व्हेन दिस एक्ट वाज प्रोमुलगेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले मडिया केमिकल का केस हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और इसमें इसको सबसे पहले इसकी उसकी जो है ना वही चैलेंज कर दिया कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, दिस एक्ट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी थी जब एक्ट बना, तो इसमें ये प्री कंडीशन थी कि 75% हैज टू बी डिपॉजिटेड, तो इन्होंने वो कंडीशंस को खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको वैलिड किया एक्ट पे, क्योंकि ये एक्ट 2002 में आने के बाद एकदम चालू नहीं हो गया था, इसको होते होते वी आर डूइंग वर्क सिंस 2005, मतलब तब एक्चुअली ये तब एक्ट 2004 में ही पास हुआ सुप्रीम कोर्ट, तब तक ये काम रुक भी गया था। एक्ट आते ऐसा नहीं कि बैंकों ने रिकवरी इसमें चालू कर दी थी, तो प्रैक्टिकली काम 2005 से ही शुरुआत हुआ, और इसमें प्री कंडीशन जो थी कंडीशन 75% की, वो इट हैज बीन डन अवे। और इसमें एक अपील का प्रोविजन सेक्शन 17 भी जोड़ा गया, जिसको ये कहा गया कि भाई इसमें अपील एज सच एप्लीकेशन, इसमें वर्ड दिया है एसए, डीआरटी एक्ट में अभी आपको मैं बताऊंगा। एसए मतलब सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन, उसको बाय वे ऑफ एप्लीकेशन ही कहा गया, मतलब उसका कोई फॉर्मेट भी नहीं दिया एक्ट ने, ताकि ईज ऑफ डूइंग रहे कि आदमी किसी बोरोवर के साथ अन्याय नहीं हो, तो सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन थ्रू अपील भी कर सकता है बाय वे ऑफ से। सेक्शन 17 वाज एडेड, और एक सेक्शन 13 आएगा, उसमें 13(3) वाज एडेड बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इसमें यह था कि उसको ही हैज ए पावर टू गिव रिप्रेजेंटेशन, और वो रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर जवाब देगा बैंक मींस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, सिक्योर्ड क्रेडिटर दे आर यूजिंग द वर्ड, तो उसको प्रॉपर्ली दे विल गिव द रिप्लाई और ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, और उसको बिल्कुल एनालिसिस करके पॉइंट वाइज पॉइंट रिप्लाई करेगा। मतलब इट शुड नॉट बी बहुत ही मतलब जैसे होता है ना लूजली, जैसे हिंदी में कई लोग लिखते हैं स्वीकार नहीं ऐसे करे आते हैं रिप्लाई हमारे पास, सी द एडवोकेट्स रिप्लाई, तो नॉट एक्सेप्टेबल। तो इट शुड बी ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी प्रॉपर्ली डेल्ट अपॉन, और उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई जाएगा 13 में। क्योंकि ये भी क्यों जाएगा, मैं आई विल बी कमिंग लेटर बताऊंगा आपको कि बड़ा क्या इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मडिया केमिकल की केस में हुई थी, और इसमें पहले इनिशियली जो रिप्लाई था ऑब्जेक्शन देना 13 का, या क्लैरिफिकेशन बाय द बोरोवर, और उसका जवाब विद इन 7 days बैंक को या ऑथराइज ऑफिसर को देना पड़ता है। बैंक मींस ऑथराइज ऑफिसर ही देगा ऑन बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो नाउ इट हैज बीन अमेंडेड, इसको करके 15 days में कर दिया। तो एक ये 13(3) इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उसका रिप्लाई हैज टू बी वर्ड यूज किया एक्ट में, कम्युनिकेटेड टू दी बोरोवर। मतलब ये है कि उसको जिस दिन नोटिस अपन को मिला है, अगर 1 तारीख को मिला है तो 15 तारीख तक उसको मिल जाना चाहिए। मतलब अपन को या तो 14 को भेजना है या 13 तारीख को भेजना है, ये माइंड में रखना पड़ेगा कि इसमें एक्ट में सब जगह मैथमेटिक्स भी आजकल चलती है, हर जगह से आईबीसी में चलती है मैथमेटिक्स, इतने दिन इतने घंटे, ये मेल इतने घंटे में होनी चाहिए, ये इतने दिन में होना चाहिए, वो सारे के सारे मैथमेटिक्स सरफेसी एक्ट में भी और आईबीसी एक्ट में भी है। तो डेज का कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मडिया केमिकल में ये चीजें डिसाइड हुई। देयर आफ्टर वन वेरी इंपॉर्टेंट केस इज ट्रांसकोर केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी ट्रांसकोर के केस में भी सर ऐसा हुआ गुप्ता जी, इसमें भी बेसिकली ये कहा कि क्योंकि 1993 में ये आरडीडीबी एक्ट आया हुआ था, जो रिकवरी और डेब्ट ड्यू टू बैंक, जिसको मैं अभी टेकअप करूंगा, जो डीआरटी एक्ट भी बोलते हैं, जिसके अंदर जिसका नाम भी अभी रिसेंटली चेंज कर दिया है, अभी रिसेंटली इसका नाम दोबारा चेंज किया है, उसका आईबीसी आने के बाद 2016 में नाम चेंज हो गया है, आरडीडीबीएफआई। कई डीआरटी में नाम वैसे भी चल रहा है एप्लीकेशन, और कई जगह नए नाम से भी लग रही है डीआरटी में एप्लीकेशन। तो ये है कि व्हेन one act is already there, DRT, recovery of debt due to bank, is already there 1996, then what is the need of this act? फिर दोबारा चैलेंज कर दिया लोगों ने, और ये कंडीशन लगा दी कि आपने केस अगर बैंक ने या सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ऑलरेडी वहां दायर कर रखा है तो आप सरफेसी एक्शन नहीं ले सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप प्री कंडीशन वहां से पहले परमिशन लें या पहले एप्लीकेशन विड्रॉ करें। डीआरटी में अगर चल रहा है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन take benefit of SARFAESI Act. SARFAESI में you can go ahead, you can take possession, you can auction the property, you can recover your money. And there was a two things.
जो पोजीशन बैंक लेता है 13(4) में 13 सब सेक्शन 4 ऑफ सरफेसी एक्ट, उसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ पोजीशन, सिंबॉलिक पोजीशन जिसको नोशनल पोजीशन बोलते हैं, सिंबॉलिक जाके सिंबॉलिक पोजीशन कैसे लेता है वो, और अनदर वन इज फिजिकल पोजीशन। तो देयर वाज ए डिफरेंस बिटवीन सिंबॉलिक एंड पोजीशन, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रांसपोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस था, इसमें उन्होंने कह दिया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज। अगर सिंबॉलिक पोजीशन भी लिया है तो आप इसका पोजीशन नोटिस का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है एज पर एक्ट, वो बनाएंगे आप, ऑथराइज्ड ऑफिसर विल साइन एंड इट विल बी affixed on the conspicuous place, ऐसे बोला एक्ट ने उनको कि उसको it will be affixed on the conspicuous place of the property, वहां लगाएंगे, एक कॉपी बोरोवर को देंगे and it will be published in a 2 newspaper, one is vernacular language of course, having sufficient circular in that locality। मतलब इसमें कई चीजें कही हैं, जैसे लोन तो हुआ है, सपोज सैंक्शन तो हो गया दिल्ली से, और लखनऊ जोन ने उसको लखनऊ जोन के अंडर में कंट्रोल होता है, और वो सपोज नोएडा में प्रॉपर्टी है, तो ये जो सारी कार्रवाई अखबार की पब्लिकेशन की होगी, तो इट विल बी वेयर प्रॉपर्टी सिचुएटेड, वहां करना पड़ेगा। लोगों ने शुरू में कई गलतियां कर दी कि हमारा हेड ऑफिस तो वहाँ है या सैंक्शन वहां से हुआ है, उस वाली ब्रांच से फाइनेंस है, होता है ना, बड़े अकाउंट कहीं सेंट्रलाइज हो जाते हैं, कई बार स्पेशलाइज ब्रांचेस से फाइनेंस होते हैं, तो ऐसा नहीं करने का, इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड ही होगा सारी चीज में। ये कई चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं, जिसमें शुरू में काफी गलतियां भी होंगी हैं और लोगों को स्टे भी मिली है, डीआरटी ने बहुत स्टे भी दिए हैं, और क्यों दिए हैं वो भी दैट आई वुड बी कमिंग। एंड थर्ड वन इम्पोर्टेंट केस इज, ये 2 केसेस थे, और मैंने इसमें बताया पब्लिकेशन वाला भी क्लॉज इसमें 7 डेज में करने वाला भी इसी के अंदर ही प्रोमulgate हुआ है। ये भी आते आते 2007 हो गया था इस केस में आते आते, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट का बाद में आया था, और बाद में ये वाला केस आया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सत्यवती टंडन। ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लासिक केस था, क्योंकि हम लोग वी वर प्रैक्टिकली एसोसिएटेड, कि ये तीनों केसेस हम खूब लगाते रहते हैं, करते रहते हैं प्रैक्टिकली। तो जब भी कोई एक्टिविटी करते थे, बेसिकली आई एम फ्रॉम जयपुर, तो राजस्थान प्रिडोमिनेंट राजस्थान में ही करता था मैं ज़्यादा एक्टिविटी। जोधपुर हाई कोर्ट भी है यहाँ पे, और जयपुर इज ए बेंच। जोधपुर में जाके लोग बाग उधर के एरिया में, जो काफी बड़ा एरिया कवर करता है उधर वेस्टर्न राजस्थान का, तो वो लोग टेक हाई कोर्ट में गए और वो इसके लिए आते थे वेयर एस, जबकि इसमें सत्यवती टंडन में स्पेशली कहा है कि व्हेन दे आर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स लाइक डीआरटी इज लिसनिंग, वो डीआरटी स्पेशलाइज कोर्ट है, वो सुनने के लिए एम्पावर्ड है। जब ये बना दिए गवर्नमेंट को, देन हाई कोर्ट शुड नॉट हियर इसको। इसमें हाई कोर्ट को बड़ा, इसके बारे में जो लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेज आई वुड बी कमिंग, पीपीटी में मैंने इंपॉर्टेंट लाइन डाली है वो वाली, तो उसको मैं अभी कवर कर लूंगा आगे आपके यहाँ पे। तो इस केसेस को इसको लेके अभी हाई कोर्ट में मतलब कह दिया कि उनको तो सुनना ही नहीं है, उनकी तो जुरिसडिक्शन में नहीं है, ये काफी काम में आता है ये केस लॉ भी, तो इसको ये इंपॉर्टेंट केस लॉ मैंने अभी आपको बताए हैं आपको। Then for the purpose of chartered accountants, our institute, SARFAESI Act is our course also। CA फाइनल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो 10 साल पहले वाले, नेचुरली वही लोग इसमें एग्जाम दे रहे होंगे, सीनियर पर्सन। हम लोगों के टाइम में नहीं था, क्योंकि एक्ट ये बाद में आया था, अभी बड़ा पुराना एक्ट है ही नहीं, और अपन ने उसमें कोर्स में भी नहीं डाला था। लेकिन नाउ SARFAESI एक्ट कोर्स में है, IBC तो ऑब्वियसली है ही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें उन्होंने इंस्टीट्यूट ने भी इसको अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है इंस्टीट्यूट के, उसमें भी उन्होंने, मैंने लास्ट में लाइन में पीपीटी में लिखा है, ये मैंने सारे जिसमें प्रोजेक्ट फंडिंग हो गया, एक तरह का जैसे इंश्योरेंस सर्वेयर का वाला काम हो गया, लोन सिंडिकेशन का, बहुत सारे काम है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे कैन डू इट। तो उसमें भी जो 25 नंबर पे XXV लिखा हुआ है, एक्टिंग एज ए रिकवरी कंसल्टेंट बैंकिंग सेक्टर, उन्होंने इसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज दे हैव पुट इन, बिकॉज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज के अलावा अपन जो सर्विसेज ऑडिटिंग टैक्सेशन की देते हैं, तो वो अपनी कोर एक्टिविटी हो गई, और लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी अपन दे सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और उसमें ये परमिसिबल है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू इट बीइंग एज ए प्रैक्टिसिंग में रहते हुए भी ये सर्विसेज वो दे सकता है थ्रू कंसल्टिंग कंपनी और दे इन देयर CA कंपनी आल्सो। एंड RBI आल्सो परमिटिंग, जो रेगुलेटर हैं, दे आर for professional, they are professional institutional regulator, obviously for banking RBI is the supreme body। तो RBI ने भी कह दिया है, और वे बैक जब 2006 का सर्कुलर लगाया है मैंने इसमें, तब क्योंकि धीरे धीरे एक्ट जो आता है, धीरे धीरे RBI के बाद में धीरे धीरे आया, तो उसको परमिशन और सब चीजें, जैसे आउटसोर्स बैंक कैन डू इट,
आउटसोर्स सर्विसेज ऐसे करके उन्होंने बाकायदा सर्कुलर निकाला और आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने इसको प्रोसीजर बनाने के लिए बैंक्स को कर दिया। तो ये भी उनको रिकवरी कंसल्टेंट को उन्होंने बताया है। एंड उन्होंने एक गाइडलाइन जो बना दी, वो गाइडलाइन जो है वो दैट इज फॉर दी जो इस फील्ड में करना चाहता है तो उसके लिए इट इज नेसेसरी टू पास द एग्जामिनेशन DRA जो मैंने क्वालिफाई किया है, डेब्ट रिकवरी एजेंट्स बोलते हैं इसको, 100 आवर्स ट्रेनिंग। और जैसे अपन लोग और कोर्स भी करते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन के, जस्ट लाइक दैट वो IIBF के द्वारा होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। वो जो बॉडी है, बैंक्स जो बैंकों की कंट्रोलिंग बॉडी है, या मान के चले उनको उनके एग्जाम होते हैं जो CAIIB वगैरह एग्जाम होते हैं, उस तरह से ये DRA एग्जाम होता है। तो उसके लिए उन्होंने RBI ने भी कह दिया कि DRA क्वालिफाई होना चाहिए, और टाइम लाइन्स कर दी, इतने बजे से पहले फोन नहीं होना चाहिए, इतने 7 बजे बाद नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें वो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग। तो एंगेजमेंट ऑफ एनफोर्समेंट एंड रिकवरी एजेंट्स को भी उन्होंने दे हैव एक्सप्लेन्ड इन देयर RBI सर्कुलर व्हिच आई हैव मेंशन्ड। अपन जैसे सिक्यूट्रेशन यूजुअली सिक्यूट्रेशन एक्ट बोलते हैं, तो व्हाट इज द सिक्यूट्रेशन एग्जैक्टली? सिक्यूट्रेशन में इसको बिल्कुल इन वर्बेटम आई विल बी स्पीकिंग। सिक्यूट्रेशन इज a credit exposure of banks and credit institutions involves a transfer of outstanding balances in loans and advances and packaging into transferable and tradable securities. Basically सिक्यूट्रेशन कंपनी, ARC कंपनीज वो क्या करेंगी, वो किसी भी बैंक का NPA का पोर्टफोलियो उठा लेंगी, उसको उठा के उसको या तो डिबेंचर इशू कर देगी या सिक्योरिटी रिसीप्ट इशू कर देगी। 15% तक कैपिटल होनी चाहिए। तो ये भी एक काम का एक कई सम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, बट दे आर मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल, उनके बिना नहीं हो सकता। दे आर रनिंग सक्सेसफुली दिस सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज उसमें। और नाउ दे पुट इन द शूज ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, इवन DRT, इवन DRT, सब जगह वो नाम चेंज हो जाता है। एक्ट अलाउ देम, क्यों ही वो सिक्यूरिटाइजेशन कंपनी के थ्रू टेक ओवर करेगा, और एवरीवेयर देयर नाम दे विल पुट इन द शूज ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, और वो दे विल डू द रिकवरी एक्टिविटीज एंड दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। तो सिक्यूरिटाइजेशन का बताया। एंड Joel Tapner, who is securitization का जो expert, internationally expert, he says the securitization is a financing tool. It involves creating, combining and recombining of assets and securities. And our RBI says securitization is a process by which a single performing asset or a pool of performing assets are sold. तो इसमें nowadays performing के अलावा non performing assets are also sold, वो भी लेते हैं पूल में बना के, तो उसको करके आगे सिक्यूरिटाइजेशन एक्टिविटी करता है। यस, तो इसके बारे में, सिक्यूरिटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मैं और वर्बेटम बोल दूं। मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर जो उसको दे रहा है, वेदर बाय रेजिंग फंड्स ऑफ सच एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स। क्यूबीज का इसमें फंडा होता है कि इसमें क्यूबीज के थ्रू फंड ले सकते हैं, उसको फंडिंग भी करते हैं। इंटरनेशनली भी क्यूबीज होते हैं, इंडिया में भी है क्वालिफाइड बायर्स जो बाय इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीप्ट, जो सिक्योरिटी रिसीप्ट परचेज करते हैं और उनको फंड देते हैं, रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन दी फाइनेंशियल एसेट्स और अदरवाइज होता है। इंटरेस्ट भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, बाय वे ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं, कई परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। एंड now I am explaining about the amendment act. some securitization act में के बारे में तो मैं अभी बताऊंगा ही, लेकिन कुछ अमेंडमेंट भी आए थे, तो उनको बहुत ब्रीफली ले लेता हूँ। and in this amendment the banks were allowed to convert their debt into the equity। मतलब सरफेसी एक्ट में भी आ गया। वैसे तो SDR जो आता है जिसको अपन करते हैं, जो RBI ने अपना सर्कुलर निकाला था, जो ऑडिट्स करते हैं या CDR का काम करते हैं, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग का, SDR का, AAA का करते हैं जे, तो स्ट्रेटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में वो 51% अपनी होल्डिंग में कंट्रोल करके उस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं। तो ये जो IBC में काम हो रहा है, वो वाला काम ये बहुत पहले बोल चुके थे कि आप SDR में इसको आप कन्वर्ट कर लें, इक्विटी में कन्वर्ट कर लें, लिस्टेड है तो लिस्टेड कंपनी की रेट में ले लें, और बाद में अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी अपॉइंट कर लें, मैनेजमेंट भी ले लें, सारा काम कर सकते हैं इसको। और बाद में प्रॉपर आदमी मैनेजमेंट को देके आप उसको डायरेक्टर में अपॉइंट कर दें। बोर्ड की पावर जस्ट लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर विल बी सस्पेंडेड। सारी चीजें इसमें 2002 में भी लिखी हुई थी। अगेन 2013 में एक अमेंडमेंट ये भी आया कि बैंक्स जो है खुद
बायर की बोरोवर की प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकती है। अगर ऑप्शन नहीं हुआ, कोई बिडर नहीं आया, तो मिनिमम रिजर्व प्राइस में एक बार दोबारा देंगे और बैंक उसको दोबारा लेके खुद भी खरीद सकता है, खुद उसका जो अमाउंट है वो जमा करा सकता है। तो वो खुद भी उनको पावर देगी, क्योंकि अभी आप जैसे बहुत सारे मैं रीजनल ऑफिसेज या जोनल ऑफिसेज देखता हूँ, वो डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें बने हुए होते हैं, वो उनका लोन का सेट ऑफ कर लेते हैं अपने, इसको दिस पावर हैज बीन गिवन। एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वर आल्सो गिवन बेनिफिट्स ऑफ दिस सरफेसी एक्ट, एज वेल एज जो एनबीएफसी हैं उनको भी बेनिफिट दे दिया। दैट वुड आई वुड बी कमिंग लेटर। अच्छा, जो कंसोर्शियम फंडिंग है, जैसे जिसमें देयर फंडिंग, जैसे मल्टीपल फंडिंग होती है, मल्टीपल फंडिंग में यूजुअली डिफरेंट एसेट्स आर देयर। मल्टीपल फंडिंग में एक आदमी ने टर्म लोन के लिए फाइनेंस कर दिया तो पर्टिकुलर एसेट्स में कर दिया, फैक्ट्री पे कर दिया, लैंड पे कर दिया, बिल्डिंग पे कर दिया। किसी ने सीसी लिमिट बन दी, किसी ने फॉरेन करेंसी की कोई बिल परचेज लिमिट ही बना दी। जैसे आजकल आईसीआई बैंक और कई कोटक बैंक, प्राइवेट बैंक कर लेते हैं कि वो कोई इनलैंड एलसी लेके आता है तो उसको भी डिस्काउंट कर देते हैं। इनलैंड एलसी की लिमिट, उनको किसी लिमिट से मतलब ही नहीं, क्योंकि वो सिक्योर्ड बाय अदर बैंक होती है। तो ऐसे करके कि मल्टीपल फंडिंग होती है, तो उस केस में क्या होगा और कंसोर्शियम फंडिंग में क्या होगा सरफेसी एक्ट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं बताता हूँ, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो होंगे, जो बैंक की जो बोरोवर की बैलेंस शीट में जो चल रहे हैं, उसमें 60% ऑफ द अमाउंट, ये भी अपने आईबीसी में भी अभी यही है, लेकिन ये चीज पहले से चल रही थी अर्लियर, बट 75%, वहाँ पे भी 60 हुआ, और अपने भी ऐसे आईबीसी में भी बाद में चेंज किया इन्होंने। तो 60% जो है, जो उसके जिनके पास में टोटल जो फंडिंग किया हुआ होगा या टोटल लोन एंड फंडिंग होगी, उसमें से वो अगर एक हो जाते हैं तो दे देमसेल्फ अपॉइंट वन ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर आउट ऑफ, अगर उसमें भी 4-5 हैं तो उसमें से वन ऑफ द एज ए लीड, इसको वो लीड बना सकते हैं। जैसे जो फंडिंग करते हैं, जैसे लीड बैंक होता है, तो उसमें रिकवरी करने के लिए भी आपस में वो लीड कंसल्टेंट बना लेते हैं। देन वो पर्टिकुलर बैंक फिर तेरा दो नोटिस, क्योंकि सब लोग देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कंसोर्शियम फंडिंग में तो एक से ही कर देंगे, मल्टीपल में सब अलग अलग करेंगे, और मल्टीपल हर आदमी अपना अपना अलग अलग 13(2) का नोटिस देगा। मैं बताऊंगा कि उसका 32 का नोटिस का क्या है, रिकवर करेगा, नोटिस देगा, अपनी एसेट्स एक्वायर करेगा, सारा करेगा। पर कंसोर्शियम फंडिंग में तो पूरी एसेट्स को फंडिंग किया हुआ है, एक ही एसेट्स को कई बैंकों ने फंडिंग किया हुआ है, तो उसमें एक बैंक ऑथराइज हो जाता है, फिर वो नोटिस देके सारी कार्रवाई करते हैं। बाद में जो पैसा आता है वो उनके अकाउंट में आता है, जस्ट लाइक टीआरए अकाउंट, देन दे डिस्ट्रीब्यूट इट इन द रेशियो, वो अपना रेशियो बना लेते हैं, और एक्सपेंसेस भी वो आपस में शेयर करते हैं, और पब्लिकेशन भी तीनों के नाम से ज्वाइंटली निकालते हैं, मतलब पब्लिकेशन भी काफी होते हैं, जस्ट लाइक आईबीसी। जैसे इसमें पब्लिकेशन एक तो जैसे जब अपन ने पोजीशन लिया तो विद इन 7 डेज एक बार पब्लिकेशन हो गया। फिर ऑक्शन जो करते हैं उसमें भी 30 डेज का ऑक्शन का पब्लिकेशन होता है, फिर री ऑक्शन होता है तो फिर भी 15 डेज का पब्लिकेशन होता है, तो इसमें भी पब्लिकेशन होता है। प्लस कई बार 32 नोटिस आर नॉट बीइंग सर्व नहीं होते हैं, देन देयर इज पब्लिकेशन। तो सब जगह 2-2 अखबारों में पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन वर्क इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम बाउंड और बहुत ध्यान रखते हुए करना पड़ता है। एंड अमेंडमेंट एक्ट में जो अभी नई चीज आई है वो कैविएट की भी आई है, कि डीआरटी में आप कैविएट भी लगा सकते हैं। जैसे आपने बैंकर्स जो भी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, इफ दे वांट टू रिकवर मनी, और उनको लगता है कि देयर मे बी डिस्प्यूट अदर पार्टी, और देयर मे बी देयर क्लेम मे बी डिलेड बिकॉज ऑफ द सम केसेस, so they can file a caveat before the high court as well as their DRT। तो वहाँ DRT जो है विदाउट हियरिंग दी सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो उसके इंग्लिश में कोई स्टे वगैरह नहीं दे सकते। DRT इज वन। अगेन आई एम डिस्कसिंग द सिक्योरिटी रिसिप्ट, जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, उसके बारे में मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, कि बाकी अदर थिंग्स लोग पढ़ लेंगे, सारा समझ लेंगे, पर दिस आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। इट मीन्स ए रिसिप्ट or other security issued by a asset reconstruction company to any qualified buyer pursuant to scheme बनाएंगे अपनी, evidencing the purchase or acquisition by the holder thereof or an undivided right, title or interest in the financial assets involved in the securitization. Good interest, the definition that I have told, very important, very important. Then enforcement is the key. How the enforcement is being done. Section 3 to Section 12A, these are about the securitization companies, and Section 13 to Section 42, बहुत छोटा सा, only 42 sections are there। ये है enforcement security, किस तरह से अपन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, उसको कैसे एनफोर्स करें। सिक्योरिटी इंटरेस्ट कैन बी इन द प्रॉपर्टी, in the recoverable right,
in the assets. Assets can be movable assets, assets can be immovable assets. There may be actionable claim, there may be debtors. Security interest किसी में भी create हो सकता है. बुक डेट्स फाइनेंसिंग की है बैंक ने तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट डेटर्स भी क्रिएट होगा. सीसी लिमिट दी है तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट इट विल बी हाइपोथेटिकल स्टॉक्स. टर्म लोन दिया है तो इट विल बी सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल बी ऑन दी प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. तो ये कई चीजों का होता है. ठीक है सर. So section 2 is definition. Section 3 says about the registration of the asset reconstruction company, that is with the Reserve Bank of India, having net own fund not less than 2 crore rupees and RBI permission obviously required. Section 4 deals with the cancellation and registration of the asset reconstruction company. There are some conditions वो जो fulfill नहीं होती हैं, तो then they should show cause notice issue to RBI and they cancel the registration. The compliances जो नहीं होती है वो it is mentioned in the Act. And Section 5 deals with the acquisition and rights of the interest in financial assets by issuing debentures, bonds, by entering into agreement with such bank or financial institution for transfer of such financial assets. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज एसेट्स या सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जो डेफिनेशन डॉक्यूमेंटेशन बनेंगे, देयर विल बी नो स्टाम्प ड्यूटी, बिकॉज अमाउंट जो है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो करोड़ों में होता है. क्योंकि बैंक के कोई एसेट्स कोई पूल बेचेगा तो कोई लाखों में नहीं बिकेगा, वो तो इट मे बी हंड्रेड्स ऑफ करोड़. बड़ी बड़ी एसेट्स कंपनी इतनी है जो बड़े बैंकों ने बना रखी है आरसी, वो कई वो बैंक्स आपस में बैंकों के एसेट्स ही अभी तो नया रिसेंट कंसेप्ट इज अ बैड बैंक. एक बैड बैंक बनने का कंसेप्ट भी, उसमें भी एमडी वगैरह पॉइंट भी हो रहे हैं. वो भी थोड़े दिनों में अभी सरफेस पे आ जाएगा अपने पास में. तो वो भी एक नई चीज होगी कि वो बैंक बैड बैंक ही खरीद लेगा इन सब लोगों की जो सरफेसी एसेट है. और देन दे विल बी अपॉइंटिंग कंसल्टेंट, या वो क्या करते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन देम कि वो हाउ दे आर वर्किंग बैड बैंक्स. पर इसमें स्टाम्प ड्यूटी का कंसेप्ट नहीं है. दिस इज वेरी गुड थिंग कि देयर इज नो स्टाम्प ड्यूटी. एंड सेक्शन 6 टू सेक्शन 12 इसमें डील किया हुआ है कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू क्वालिफाइड बायर्स को कैसे देंगे, रेस फंड्स को कैसे करेंगे, दैट इज मेंशन दी सरफेसी एक्ट. एंड रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, how the change of management will be there, how the takeover will be there. These are all like IBC Act. तो IBC Act में भी अपन कह रहे हैं these were already in the 2002 Act. इसमें कुछ भी changes अभी भी नहीं हुए हैं, वो पुराने लिखे हुए हैं और सेम रेप्लिका रिपीट 2016 में हुई है. सेल, how the asset will be sold, लीज आउट, लीज भी कर सकते हैं, क्योंकि सरफेसी में किसी का एसेट लिया, उस पर अगर टावर लगा हुआ है तो उसका रेंट आएगा तो वो भी बैंक के पास जाएगा. अगर लीज एसेट है तो उसको रेंट सिक्योर क्रेडिटर के पास आने चालू हो जाएगा. दे विल रीशेड्यूलिंग एंड पेमेंट ऑफ डेब्ट जो है वो भी करने की पावर एआरसी को है, जो भी डील कर रहा है. एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑब्वियसली है ही. सेटलमेंट ऑफ ड्यूज कर सकते हैं. एंड वर्क एज ए रिसीवर, बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिसीवर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ द बैंक, एफआई. ये भी एक काम है जो एआरसी करती है कि रिसीवर बन जाती है, या वो भी किसी और कंसल्टेंट को या एडवोकेट को लगा देती है. एजेंट्स एंड मैनेजर ऑफ द बैंक एफआई करती है. यस. सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये वर्ड काफी आएगा. दैट इज राइट, टाइटल, interest upon any property in favor of any secured creditor. Secured creditor means banks or financial institutions जिसने पैसा दिया. Includes mortgage, charge, hypothecation. ये चीजों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जिसको मैंने ब्रीफली आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ. Then the sections. These are the section, important sections. Section 13.1, liquidation of security interest without the intervention code, which I have already told. 13.1 section is very important. And the most important section is possession. Power of possession is given, and power of auction is given to the bank and financial institution first time in India under section 13.4. But we start from the 13.2. 13.2 से start करेंगे, 13.4 बाद में आएंगे. अच्छा, ये एक्ट एप्लीकेबल किसको नहीं है ये भी मैं बता देता हूँ कि ये एप्लीकेबल जैसे एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं है, जैसे लियन ऑफ एनी गुड्स, जैसे बेलमेंट पे कोई सामान पड़ा हुआ है, या प्लेज ऑफ मूवेबल्स है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है, लियन पे नहीं है. राइट ऑफ अनपेड सेलर, जैसे अपन पोजीशन लेने गए, उस पर अनपेड सेलर का माल पड़ा हुआ है गुड्स में, तो वो दैट कैन नॉट बी पजेस्ड. कोई कंडीशनल सेल पे माल आया हुआ है, एसेट्स में है, वो अपनी एसेट पार्ट नहीं है एसेट्स का, या डेटर स्टॉक का पार्ट नहीं है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूसिव ऑफ द सिक्योरिटी इंटरेस्ट. जो एसेट्स होगी मॉर्गेज एसेट्स में नहीं होगा.
एंड इफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इज लेस देन ₹1 लाख। तो जैसे ये IBC भी पहले 1 लाख से चालू हुआ था, देन लास्ट ईयर इसको 1 करोड़ कर दिया था इन्होंने, बट स्टिल यहाँ पे अभी लिमिट 1 लाख की जो 2002 में आई थी, दैट इज वही सरफेसी एक्ट में 1 लाख ही है कि 1 लाख से ऊपर अगर आउटस्टैंडिंग होगा, बिलो 1 लाख होगा तब नहीं एक्ट चलेगा, 1 लाख से ऊपर में सरफेसी एक्ट स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो लैंड पे नहीं चलेगा ये, तो अदर देन नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगी तो चलेगा। तो इसमें भी कई कोर्ट केस हमें आई विल बी कमिंग लेटर की, कई एग्रीकल्चर लैंड है उसमें कई लोग इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो देन व्हाट विल हैपन, कोर्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करेगा कि वेदर रिकवरी भी कैन बी मेड अंडर सरफेसी एक्ट और नॉट। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कभी एग्जाम में क्वेश्चन बना के वो पूछ भी सकते हैं कि 1 करोड़ का लोन था और उसमें 18 लाख रुपए अभी रिकवरी के लिए रह गए हैं, क्योंकि तो सरफेसी एक्ट में अपन रिकवरी कर सकते नहीं कर सकते, दैट इज दी सिंपल क्वेश्चन। बट इसमें ये चीज है कि अगर जब लोन दिया था, जो सैंक्शन लोन था, उसका 20% से अगर नीचे हो जाता है, यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ लोन दिया तो 20 लाख से नीचे रह जाता है, देन वी कैन नॉट रिकवर द मनी अंडर सरफेसी एक्ट। ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट इज लेस देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो भी हमने दिया था उसको याद चला जाता है, तो ये इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती इसके अंदर, ये चीज ध्यान रखने वाली बात। दिस एक्ट वाज आल्सो वेरी पावरफुल लाइक IBC, प्रोविजन दिस एक्ट इज ओवरराइड ऑल ऑफ द एक्ट्स। सेक्शन 35 है वो भी स्टार्ट ऐसे करता है, नॉट फिनिश पेंडिंग एनीथिंग कंटेंट in any other inconsistent content in any other act। तो लॉ जो भी है ये लैंग्वेज सेम IBC में भी है, इसमें भी यूज की गई है, हटी नहीं है इसमें से भी, अभी भी इसमें भी अभी भी है। हम अभी सर्विसिंग में एक्शन जाते हैं, कोई बात होती है तो हम ये भी सेक्शन 35 का हवाला देते हैं जरूर, बिल्कुल कोई भी बात होती है, लेकिन फिर भी अब सेक्शन 14 जो IBC में आ गया, मॉरेटोरियम वाला आ गया, वो तो लगेगा ही, 6 महीने के लिए 180 दिन के लिए मॉरेटोरियम आ गया, तो उसमें सरफेसी एक्ट भी काम नहीं करेगा, कोई भी एक्शन काम नहीं होगा। सरफेसी एक्शन काम कब करेगा, जब कंपनी लिक्विडेशन में आ जाएगी, देन अगेन देयर विल अभी कमिंग लेटर कि उसमें कैसे काम करेगा और IBC में उसमें कैसे इंटरप्ले में चलेगा, दैट आई विल बी कमिंग। तो ओवरराइडिंग फैक्ट बारे में आपको बता दिया मैंने। और सिविल कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये एक्ट चालू हुआ तो कोर्ट में जजेस वर आल्सो नॉट वेरी फैमिलियर विद दिस एक्ट, दे वर गिविंग दी स्टे, समबडी सेज बैंक का नोटिस लेके जाता, 13 का नोटिस लेके, हिसाब ये तो मेरा गलत आ गया, मेरा तो लोन ही नहीं है। और बैंक्स भी कहती थी कि हाँ एक बार इसको TI बोलते हैं, टेम्पररी स्टे इंजेक्शन दे देता था, स्टे कर देता था कि भाई आगे की डेट दे रहे हैं, आप उस 1 महीने बाद आइए, तब तक का केस आपका स्टे कर दिया हमने। दीज थिंग्स वर गोइंग, ये बात पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, नॉट नाउ डेज। जब ये एक्ट आया था तो उसमें एक्ट सिविल कोड को तो सुनने की जुरिसडिक्शन ही नहीं थी। जो ही हम फोन खोल के एक 3 लाइन का सेक्शन पढ़ाते थे, जज साहब को देख साहब चौंक जाते थे, अरे यार इसमें जुरिसडिक्शन ही गलत दे दिया हमने, तो सुनना ही नहीं हमको। तो they need not to hear the case, civil code has no jurisdiction under section 30 of the code, because when the specialized courts DRT is there, they will hear section 17 में अपील आप DRT में करेंगे, वहां पे कोई दिक्कत आएगी, हार जाएंगे, तो देन DRT में अपील होगी सेक्शन 18 में। तो सिविल कोर्ट को इंजेक्शन नहीं देना है, इवन हाई कोर्ट को भी नहीं सुनना है, वो भी सत्यवादी टंडन में बोल दिया है। लेकिन अब नाउ डेज हाई कोर्ट इज लाइक माई बाप, अब सबका वो तो हाई कोर्ट तो कुछ भी सुन सकता है, कुछ भी कह सकता है, तो चल रहा है, अभी भी सुनता है हाई कोर्ट और स्टे देता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो एक्ट की पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन सेक्शन 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 32 पहले भी था, अभी भी था, हर एक्ट में होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इस केस में कोई भी पोजीशन लिया और किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हुई तो उसको पोजीशन को जो है गुड फेथ में लिया हुआ है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की प्रोटेक्शन निकले, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऑथराइज ऑफिसर, बैंकर एज वेल एज कंसल्टेंट, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बैंक का काम कर रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग क्या वर्ड यूज करूँ, मतलब बेसिकली सोशल, वी आर डूइंग द सोशल मर्डर ऑफ ए बोरोवर। उसका पोजीशन ले लिया, उसको अखबार में निकाल दिया, अखबार वाले भी न्यूज में आइटम बना के भी छाप देते हैं कई बार, तो ये प्रॉब्लम होती है कई बार कि 7 दिन के पब्लिशिंग करना है तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें वो बेचारा अपनी एसेट्स को बाद में वो बैंक से बेच भी नहीं पाता, क्योंकि वो थोड़ा डिस्प्यूटेड टाइप हो जाता है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सिस्टम ऐसा है, तो उसका इसलिए उसको बड़ा स्ट्रिंजेंट लॉ है, तो उसको बहुत ही मेटिकुलसली और बहुत ढंग से करना पड़ता है, तो प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें एक्ट में। NBFC को भी बड़ा इंपॉर्टेंटली अमेंडमेंट करके RBI ने इसकी लिमिट घटा दी। अर्लियर जो NBFC हैविंग एसेट साइज, उनका जो लोन बुक थी जो 5 करोड़ थी,
it has been brought down to 100 crore. और जो उनका इंडिविजुअल लोन अमाउंट था भले 1 करोड़ से ऊपर वाले पे लगता था, ये नोटिस पावर थी एनबीएफसी को। अब ऐसी एनबीएफसी जिनकी लोन बुक 100 करोड़ की है और इंडिविजुअल लोन अमाउंट 50 लाख का है एंड अबोव है, तो उस प्रोविजन में अमेंडमेंट कर दिया, तो दे कैन गो फॉर सर्फेसिएट अपना वो अपना रजिस्ट्रेशन आरबीआई को बताएंगे कि हम इस पे क्वालिफाई करते हैं, तो उसको आरबीआई जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर डाल दिए इसको, दे विल बी क्वालिफाइड, दे कैन रिकवर मनी। तो वो अपने खुद के अंदर ही ऑथराइज ऑफिसर बनाएंगे, तो एनबीएफसी देमसेल्फ रिकवर, उसके लिए उनको भी कहीं किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो एनबीएफसी भी दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया की, जो हर जगह बैंकिंग नहीं है, तो एनबीएफसी आल्सो डूइंग, तो दे आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ द सर्फेसी एक्ट। नाउ हाउ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलें इसके अंदर कि प्रोसीजर की तरफ चलें कि हाउ दिस एनफोर्समेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट happens, how first of all I have told the identification of NPA as per the RBI guideline, पहला वो होगा। फाइनेंशियल मैंने बता भी दिया आपको कि फाइनेंशियल इशू होना चाहिए, और देन 60 डेज नोटिस, 60 दिन का नोटिस बोलते हैं या 13-2 नोटिस बोलते हैं इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 16 डेज नोटिस बोरोवर और गारंटर हो जाएगा। तो इसमें गारंटर की जो डेफिनेशन है वो एक्ट में लिखी हुई है कि बोरोवर इंक्लूड गारंटर्स। मतलब ये इसमें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जैसे पार्टनर्स हो गए, पार्टनर्स को नोटिस दे दिया लेकिन प्रॉपर्टी किसी और की थी, वो गारंटर था उसको भूल गए, तो अगर नोटिस देने में गलती हो गई, तो ये दिस इज द फाउंडेशन स्टोन, तो वो सारी एक्टिविटी नल एंड वाइड हो जाएगी और किसी भी तरह की जो रिकवरी की हुई है वो भी रिवर्ट करनी पड़ सकती है, पोजीशन लिया हुआ, दैट हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक। और खर्चा, पब्लिकेशन का खर्चा, सब चीज एक्सपेंसेस है, दैट विल बी ऑफिस रिवर्ट करने पड़ जाते हैं। तो दैट इज इशू, नोटिस भी देना पड़ता है कि इसमें 60 दिन कैसे कैलकुलेट करने हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबको बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट जाएंगे, जो भी बोरोवर्स को, गारंटर्स को, और उसमें आजकल ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलती है हर रजिस्ट्री की कि वो किसको लास्ट में सर्व हुआ, उसकी टेक्निक कोड भी बैंकर्स निकालेंगे, और वो क्योंकि बाद में भी वो डीएम कोड का ऑर्डर लेते हैं या और कोर्ट से हम सबको सब मांगती हैं वो कोड, कि उससे 60 दिन दिखे जाएंगे, देन 13(4) विल बी इनिशिएटेड पोजीशन की एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सर्विस ऑफ नोटिस भी इंपॉर्टेंट है, तो आई एम जस्ट कमिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स में 13(2) नोटिस जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। तो इसमें 13(2) नोटिस में अमाउंट भी मेंशन होगी, पहले तो बोरोवर गारंटर्स के ऊपर नाम प्रॉपर्ली मेंशन होंगे, कोई छूटना नहीं चाहिए, क्या लिमिट लिया हुआ है, सैंक्शन लेटर की डेट जाएगी, किस तारीख को सैंक्शन किया है, क्योंकि नोटिस यूजुअली 90% नोटिस जो बैंकर्स होते हैं, क्योंकि वो 13(2) खुद ही करते हैं। पहले अर्लियर वी यूज्ड टू मेड, पर हम लोग बनाते थे तो हम लोग फीस चार्ज करते थे, तो बैंक वाले धीरे धीरे सब बैंक वाले बनाने लग गए आजकल नोटिस। पर उसमें कोई गलतियां निकालना चाहे तो उसमें खूब गलतियां होती हैं, और उन गलतियां निकाल के कोई डीआरटी जाए तो स्टे भी ले सकता है बहुत आराम से, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट होता है, जो कि बैंकर्स को कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, लोकल कोर्ट्स ने जो कह रखा है कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कि जैसे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कि सबसे पहले खाता एनपी होगा, दी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू इट, दी प्रोफेशनल कैन डू इट, देन उसमें खाता एनपी होते ही तो सब इसमें इंटरेस्ट लाना बंद हो गया, खाता एनपी हो गया। लेकिन मिरर बैंकिंग में, बैंक में चलता रहता है, मिरर अकाउंटिंग में चलता रहता है, अपन लोग लगाते हैं उसमें मैनुअल इंटरेस्ट लगाते हैं, जो पैसा कोई आ गया उसको रिड्यूस करते हैं। फिर देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ पीनल इंटरेस्ट, बैंक पेनल इंटरेस्ट भी लगाता है, पीनल इंटरेस्ट भी लगाता है, 2% यूजुअली लगाता है, कि वो ऑटोमेटिक चार्ज होता है, पर उसको कैपिटलाइज कर देता है, जैसे इंटरेस्ट तो कैपिटलाइज होता है, आजकल बैंकों का सिस्टम है मंथली इंटरेस्ट का, अप्रैल का ब्याज लगाया, फिर वो ब्याज लग के मई का ब्याज लगाएगा, तो 1 लाख में सपोज 1,000, तो 1 लाख 1,000 रुपये ब्याज लगेगा, दैट विल बी एडेड, और उस पर पेनल इंटरेस्ट भी होगा, पेनल इंटरेस्ट भी सपोज 500 रुपये वो हुआ, तो वो भी ऐड हो जाता है, और उस पे इंटरेस्ट पे, पेनल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाता है। तो वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंदर एंड अदर हम इसके केस के वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे भी कई केसेस इसमें अटक गए थे शुरू में, लेकिन हम भी अब आल्सो लर्न फ्रॉम द से इन हिंदी, ठुकरा ठुकरा के ठाकुर बनते हैं, तो वी आल्सो लर्न दिस की कोर्ट केसेस में कैसे होते हैं। तो इस केसेस में भी इसका कोई बेनिफिट प्रोफेशनल लेना चाहे तो भी ले सकता है, आइदर वे बता रहा हूँ मैं, और बैंकर ध्यान रखना चाहे तो वो अपनी सीमलेस रिकवरी भी कर सकता है। सिक्योर्ड एसेट्स का मेंशन करना पड़ता है 13(2) नोटिस में, कि प्रॉपर्टी किसके नाम से है, उसमें लोग गलत भर देते हैं, मेजरमेंट में गलत भर देते हैं, लोग पूरा पढ़ते, दे कांट अंडरस्टैंड
बाउंडेड बाई में नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, वो प्रॉपरली यूजुअली कहीं वो समझ में नहीं आता है, लेकिन बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अगर गलती हो गई तो डीआरटी स्टे देगा। वो क्यों देगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है सब जगह, दैट आई वुड बी कमिंग लेटर। तो जो मैथमेटिक्स लाइफ में हर जगह है, थिंग्स आर नॉट इजी। लोगों को लगता है कि यार ये क्या चीज है, एक पन्ने का नोटिस, नोटिस आपके, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, हमारे किसी क्लाइंट की ना किसी के आता होगा, अपन पढ़ेंगे तो इट सीम वेरी सिंपल नोटिस, लेकिन उसको बनाना इतना सो टेक्निकल कि नॉर्मल आदमी इसको ढंग से नहीं बना सकता अगर उसको एक्ट का पता नहीं होगी, इसका आगे क्या होगा। नोटिस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें ये चीजें मेंशन होती है 13 नोटिस में। सारे पॉसिबल एड्रेसेस को बोरोवर को, गारंटर को भेजा जाता है, उसमें मेंशन भी किया जाता है जो उनके अंदर है, जहाँ वो रहता है, वर्क फॉर गेन, वर्क फॉर बिजनेस वो करता है, वो एड्रेस पे, रेजिडेंस के एड्रेस पे, अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट भी जाएगा, उसमें नेम एंड डेजिग्नेशन ऑथराइज ऑफिस भी जाएगा। इस पे भी स्टे देता है डीआरटी। अगर उसको समझ गया कि आपने यार साइन तो कर दिया, सील लगा दी, नाम नहीं लिखा ऑथराइज ऑफिसर ने अपना, तो स्टे दे दिया। कोई मतलब ऐसे भी केस हुआ है, डेट एंड डिस्पैच ऑफ नोटिस डालेगा, मोड ऑफ डिस्पैच भी मेंशन करेगा कि कैसे भेज रहा है, स्पीड पोस्ट से भेज रहा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहा है, कुरियर से भेज रहा है, मेल से भेज रहा है, उसको बकायदा मेंशन भी करेगा। डिटेल्स देगा, एक्ट में लिखा हुआ है डिटेल्स, जो एक्ट जो लगता है ना डिटेल, डिटेल में एस बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटेल नहीं लिखा, डिटेल्स लिखा है, तो उसको भी इंटरप्रेट ने जो कोर्ट्स ने इस तरह से इंटरप्रेट कर दिया, तो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इंटरप्रिटेशन की डिटेल्स में वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं फुल डिटेल सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, लोकेशन, मेजरिंग, ओनर, बाउंडेड बाय, कुछ डिस्प्यूट है तो वो भी इसमें लिखने पड़ेंगे कि एरिया हम फिर लिखते हैं बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार, एज पर रिकॉर्ड के एरिया ये है, मौके पे कम भी हो सकता है, फिर बाद में डिस्प्यूट नहीं है, तो वो टेक्निकलिटी जो प्रैक्टिकली काम करते हैं उन्होंने निकाल भी रखी होती है। इसको, इस लाइन को कैसे लिखें, कि एरिया को लिखना है वो, क्योंकि कुछ मेंशन कर दिया और मौके पे एरिया में फर्क आ गया, फिर क्या होगा, फिर डिस्प्यूट हो जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल थिंग्स आर डिफरेंट, बट आई एम स्पीक टू दी थ्योरेटिकल पार्ट मोर ऑफ डिटेल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कई लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भूल जाते हैं, जैसे तो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं तो सारा टर्म लोन भी लिख देगा, सीसी भी लिख देगा, बुक डेट्स लिमिट है, बिल्स लिमिट है, फंडेड लिमिट है, नॉन फंडेड है, सबको मेंशन करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी मेंशन। बट यूजुअली क्या होते हैं, बैंकर्स कई बार भूल जाते हैं, तो वो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस पूरी लिखते नहीं है, तो वो भी एक स्टे का कारण बन जाता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन दी फाइनेंशियल। ये सबको जाएगा, बोरोवर को, गारंटर को, इनके एजेंट्स को, डिलीवर होगा बोरोवर को, कहाँ पे होगा, रेजिडेंशियल पे, घर पे जहाँ बिजनेस करेगा। डिटेल्स में क्या जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट होगी, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इसमें दिखा दूंगा छोटा सा, इसमें कैसे कैलकुलेट होगी, है ना, कि 13(2) के अंदर अटैच्ड होकर जाएगा। कई लोग ऐसा नहीं कि कई लोग बैंकर्स अच्छा काम भी करते हैं, वो प्रॉपर्ली मेंशन भी करते हैं डिटेल्स वगैरह, स्टॉक ये पूरा स्टेटमेंट भी लगाते हैं, और विदाउट एनी मिस्टेक करते हैं, जो पहले कहीं से स्टे आया हुआ होता है या उनको पता होता है सिस्टम का। कैसे नोटिस सर्विस होगा, जो डिमांड नोटिस है, बिकॉज 13(2) का जो नोटिस है, इट इज बीइंग कॉल्ड दी रिकवरी नोटिस, डिमांड नोटिस, या बोले कुछ भी बोल सकते हैं कि एक तरह से ये आपको रिस्ट्रेन कर देता है बोरोवर को। बोरोवर इसके बाद में एसेट्स को, क्योंकि कई लोग होते हैं 13(2) एनपी हो गया क्या करें, सबसे पहले 13(2) नोटिस दो, पहले आपको 13/4 करना है, 5 साल बाद करो, किसने कहा 60 दिन में करो, तो मिनिमम टाइम है, 60 दिन का गैप देना है, बाद में भी कर लो, लेकिन 13(2) के बेनिफिट क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है, इवन बैंकर्स को भी पता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, ही कैन नॉट अलाइन, दे कैन, ही द बोरोवर कैन नॉट ट्रांसफर हिज एसेट्स। कितना बड़ा फायदा हो गया, आपने 13 दिया, उसने अपनी एसेट बंद होगी काटनी, और एक्ट में तो था ये चीज, तो इसमें पहले से कही हुई है, आज से मतलब आप देखो 2021 करीब 19 साल 20 साल हो गया उस सब एक्ट बनाया था जिन लोगों ने, और वो मतलब बेसिकली ये जो कमेटी थी, नरसिम्हा कमेटी फर्स्ट, नरसिम्हा कमेटी 2, और अध्यार्जुन कमेटी, देखो अभी बोलते बोलते याद आ गया, ये 3 कमेटियों ने बनाया था, जिसमें नरसिम्हा कमेटी तो अपनी ये आईबीसी में भी आई है, तो ये नरसिम्हा वो नरसिम्हा है या वो इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट इसमें मैंने जो पढ़ा था, नरसिम्हा 1 कमेटी 2 कमेटी, जब 2002 में एक्ट बना, जून में, और दिसंबर में इसको कंसेंट मिली, इस तरह से चला था ये वाला एक्ट भी। तो ये कमेटियों ने जो बनाया, तो वो सब चीजों को पहले ही लिख दिया उन्होंने, सब चीजें बहुत बढ़िया लिख दी इसको, तो और क्या परमिशन मोड डिलीवरी है, हैंड डिलीवरी है, दिया और बोरोवर के साइन करा लिए सेकंड कॉपी पे, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, पता है अपने को, स्पीड पोस्ट है, कोरियर है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को भी इन्होंने
उसको परमिसिबल मोड ऑफ डिलीवरी माना गया है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है, ये भी अराउंड 10 साल पुराना केस बता रहा हूँ वैसे तो मैं आपको। कलकत्ता मधुसूदन घोष वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है। इसमें उन्होंने अमाउंट मेंशन कर दी थी, छोटा सा केस था हालांकि, सर्टेन अमाउंट रिकवरी है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट अप टू सच एंड सच डेट। एक्ट चालू हुआ था 2005 में, तब का ही एक्ट, तब का ही प्रैक्टिकली शुरुआत का केस ही है, तो शुरुआत में गलतियां होती थी। तो उसमें यही था कि उसमें जो बेसिकली जो एंटायर कैलकुलेशन नहीं दिया था, उसी के बारे में ही जो मैंने आपको बताया, उसी को करते हुए जो सारी प्रोसीडिंग को नलीफाई कर दिया, एंटायर प्रोसीडिंग को। और एनपीए जो एसेट्स है पोजीशन भी रिस्टोर बैक हुआ, सारा एक्सपेंस भी लगा। सिंपल उन्होंने बेचारों ने कुछ भी गलती नहीं की थी, टोटल आउटस्टैंडिंग करके इंटरेस्ट जोड़ के बता दिया था, पर डिटेल नहीं दी थी। इट वाज ओनली मिस्टेक, तो लोग समझ गए इसको। लेकिन इस केस, ये केस भी 2005 का डिसाइड होते 2010 हो गया इसको भी। कई बार क्या होता है कि नोटिस अपन देते हैं बोरोवर को या गारंटर को, वो बदले में कोई जवाब देता है कि नहीं आपने ये नोटिस गलत दिया है, जबकि हमने तो लोन ही नहीं लिया, कुछ भी देता है। तो दिस काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस या लेटर होता है, वो भी एक नोटिस का सर्विस का प्रूफ माना जाता है। और एक पोस्टल अथॉरिटी से मैंने बताया था ट्रैकिंग का प्रूफ होता है, या कोरियर की रिसिप्ट पीओडी आती है आजकल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब चीजें भी हैं, क्योंकि ये सारी इसलिए चाहिए होती है सर्विस का प्रूफ, कि जब 13 करना होता है पोजीशन के लिए, तो सेक्शन 14 भी इसमें आएगा, दैट वुड बी डीलिंग वेरी सुन। तो उसमें डीएम के यहाँ, डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हर जिले में होता है, जिसको जिला कलेक्टर भी है अपने यहाँ पे, या फिर सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जहाँ सीएमएम है, जैसे राजस्थान में जयपुर में बैठता है, जोधपुर में बैठता है, कई बार दोनों होते हैं, एक काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, दोनों जगह एप्लीकेशन लग रही है, ये भी पॉसिबल है। तो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन, वहाँ पे एप्लीकेशन लगती है सेक्शन 14 में, जिसमें फिजिकल पोजीशन लेना होता है। वो हमारे अपने लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईबीसी में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली कई बार क्या होता है कि उसकी एसेट्स है किसी, अपन वी आर डूइंग आईबीसी वर्क फॉर दी, कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, कोई रियल एस्टेट कंपनी का काम कर रहे हैं, तो उसकी एसेट्स को एक्वायर भी करना पड़ता है। कई बार ऑक्यूपेंट्स होते हैं, किसी ने कोई एडवांस दिया, उसने कब्जा कर लिया, ताला कर दिया, तो कई चीजें होती हैं, कई बार फैक्ट्रीज होती हैं। तो पोजीशन जो है, दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोजीशन की कैसे लिया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आप प्रैक्टिकलिटी अपने को उसमें आईबीसी में ही बहुत काम आती है इसके अंदर। तो ये प्रूफ ऑफ सर्विस के मैंने आपको बता दिया कि तरीके क्या है। नोटिस कई बार एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, बैंकों के पास में नोटिस सर्व नहीं होते हैं या लौट के आ जाते हैं, उस पर लिखा होता है, कई बार ये जो होते हैं ना, जो लिख देते हैं लेने से इनकार किया, या लिख देते हैं, या तो वो इट विल बी डीम टू बी सर्व, की माना जाता है। इसको कोर्ट ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार मकान ही बंद मिला, या मकान नहीं मिला, ऐसे लिखा हुआ गया, सर्विस ही नहीं हुआ, तो अनटिल अनलेस नोटिस इज बीइंग सर्व, जब तक नोटिस सर्व नहीं होगा तो 60 दिन कैसे कैलकुलेट होंगे, ये क्वेश्चन आएगा, तो एक्ट चलेगा ही नहीं, सर्विस में रिकवरी नहीं होगी। तो उसके लिए इन्होंने कर दिया कि अगर नोटिस वापस लौट के आ गया है, या आदमी बोरोवर का अता पता नहीं चल रहा है, इट इज ही इज नॉट ट्रेसेबल, तो उसको अगर प्रॉपर्टी है, सर्विस एक्ट में प्रॉपर्टी है, वो बंद कर चला गया, तो उसको फिक्स कर देंगे नोटिस को, जो है 13(2) का नोटिस उसकी प्रॉपर्टी के एरिया में, उसमें कोई अखबार लगा के फोटो खींच लेंगे, ताकि पता चल जाए कि इस दिन को नोटिस। कई बार क्या होता है, कोर्ट में या बोरोवर बोल देता है कि ये तो साहब आपने बाद में फैब्रिकेट कर लिया सारा। तो बेटर रहता है कि हम लोग क्या करते हैं कि उस दिन का अखबार, कोई भी अच्छा नेशनल अखबार लगा के फोटो खींचते हैं, देखो साहब उस दिन का अखबार है, ये न्यूज छपी थी हमने, उसी दिन किया है हमने, कोई वायलेशन नहीं किया है इसमें। तो वो कर देते हैं और उसको पब्लिकेशन कर देते हैं 2 न्यूज़पेपर में, इन वन इज वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो उससे वो सर्विस का 60 दिन के बाद में उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं 13(4) की। तो इसमें ये एक्टिविटी करने के लिए दे रखा है इसमें। अब व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ 60 दिन? 60 दिन का नोटिस जो मैंने बताया था, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली दिस इज अ रिकॉलिंग नोटिस, क्योंकि रिकॉलिंग नोटिस बैंक्स अलग अलग ढंग से भी देते रहते हैं। रूटीन में वकील का नोटिस भी देते रहते हैं कि आपका खाता एनपीए हो गया, आप जमा करा दें। रिकॉल करने का नोटिस खुद भी दे देते हैं, पर उनकी लीगल सेंटिटी नहीं होती है। सरफेसी एक्शन उनके बेसिस पे नहीं हो सकता। जब तक 13(2) का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नोटिस नहीं होगा, तब तक सरफेसी एक्शन नहीं चलेगा। ये लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। एंड बोरोवर कैनॉट ट्रांसफर एनी एसेट, कोई भी जो भी मॉर्गेज है, बाय वे ऑफ ले, सीली, सिक्योर, इवन उसको रेंट आउट भी नहीं कर सकता। वो भी प्रिस्क्राइब किया हुआ, वो कर दिया तो वो इलीगल है। रेंटिंग का क्या होगा, दैट आई विल बी कमिंग लेटर। रेंट का प्रॉपर्टी पे अगर फाइनेंस हुआ है तो क्या सर्विस एक्शन में क्या होगा, वो अपन डील करेंगे।
60 दिन का लीगल इफेक्ट ये है कि 60 दिन बाद 13/4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 60 दिन का। तब तक 60 दिन में बैंक क्या करेगा, बैंक सेक्शन 14 में एप्लीकेशन लगा के डीएम के यहाँ पे उसका एक्चुअल पोजीशन लेने एंड मेंटेन करने, दो चीजें बता रहा हूँ मैं इसमें। एक्ट में लेना भी लिखा हुआ है एंड टू मेंटेन दी पोजीशन। कई बार क्या होता है कि आपने पोजीशन के लिए, क्योंकि 13/4 में क्या होगा, डीएम परमिशन दे देगा, कंसर्निंग एसपी को लेटर लिख देगा। कंसर्न एसपी जो है, एसपी ऑर्डर निकाल के कंसर्न एसएचओ को देगा जहाँ प्रॉपर्टी है, कि आप जाइए और पीसफुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए एंड पीसफुल पोजीशन दिलवाइए। आप फिर बैंकर को वो जाब्ता, पुलिस जाब्ता कितना चाहिए उसकी, उसका एस्टिमेट बना के देगा कि साहब मेरे को साहब एक एसआई चाहिए, 4 कांस्टेबल चाहिए, एक महिला कांस्टेबल चाहिए, इतनी इसकी पर डे कॉस्ट इतनी इतनी होती है, आप 80,000 70,000 लाख रुपए का इतना डीडी आप जमा कराओ, देन पर्टिकुलर डे वी विल प्रोवाइडिंग दी पुलिस फोर्स टू यू, देन यू विल गो। सेक्शन 14 है, उसकी जो पावर है, उस ऑर्डर जो डीएम का आदेश है वो लेके करेंगे, तो उसमें देन विल गो एंड टेक दी पोजीशन। सामान भी निकालेंगे, उसका ताला भी बंद करेंगे, फोटो भी खींचेंगे, पंचनामा भी बनाएंगे। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो पंचनामा कैसे बनेगा वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो एक्ट में तो लिया हुआ है, एक्ट जो सर्विसी एक्ट है उसमें तो इन्होंने पंचनामा की लैंग्वेज भी दे रखी है कैसे करेंगे। तो ये चीजें हैं। अगेन 60 दिन का नोटिस दिया है तो वो रिप्रेजेंटेशन देगा, जो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट से फर्स्ट जो बढ़िया केमिकल में आ गया था, रूल नंबर 3 में जो आ गया, तो इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड विद इन 15 डेज। मैंने आपको बताया था इसको कि वो भी कवर करेगा। तो इसमें बीच में वो ऑब्जेक्शन भी डालता है वो, क्योंकि 60 दिन होने से पहले वो जो पेज बरोबर होता है या कंसल्टेंट होता है वो 55वें दिन वो ऑब्जेक्शन लगाता है, ताकि फिर उसको टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन का जवाब उसको 15 दिन में देना है। तो वो ऑब्जेक्शन ही ऐसे लगाता है कि मेरे को स्टेटमेंट नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरा कुछ ना कुछ निकालता रहता है, वो गलतियां निकाल देता है, होती भी हैं। तो वो उसको टेस्ट भी उसको बनाने में, जवाब देने में वो ऑथराइज ऑफिसर ही देता है, कोई और जवाब नहीं देता ब्रांच मैनेजर। तो वो कम्युनिकेटेड होता है, तो तब तक वो कोई एक्शन उसमें नहीं हो सकता, तब तक उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये 13(3)A में जो है प्रॉपरली जवाब नहीं चला जाए सेक्शन का, और रूल 3A में अंदर उसको कम्युनिकेटेड नहीं हो जाए। 13(4) में देखो, पहला टेक द पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स बाय वे ऑफ ट्रांसफर अरेंजमेंट और टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड राइट टू ट्रांसफर इज ए लीज एंड असाइनमेंट एंड सेल। मैंने जो बात बताई है कि ये भी 2002 के एक्ट में लिख दी थी उन्होंने, मैनेजमेंट को लेने की बात, जो अपन आज मैनेजमेंट को लेने की बातें करते हैं अंडर दी आईबीसी। तो ये वो एक्ट्स आर एकिन, बिल्कुल सिमिलर ही है, लेकिन क्या है कि वो वन वे फॉरवर्ड। आईबीसी में और भी चीजें आ गई हैं, बिल्कुल जैसे जो ऑपरेशन ये ओएल का काम होता था ना, ओएल वाला काम दे दिया अपने को, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जो ऑफिशियल लिक्विडेटर करता था ना, क्योंकि इसमें लिक्विडेटर वाला काम भी घुसा दिया अपने को। दोनों दोनों चीजें दे दी इसको, एक आदमी दोनों हो सकता है, आईपी भी बनेगा, आरपी भी होगा, इंटरिम भी आईआरपी होगा, आरपी भी हो सकता है, सिमिलर पर्सन लिक्विडेटर भी हो सकता है, और तीनों अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया कि इसमें मैनेजमेंट को भी लेने का पावर है। 13 में वो मेंटेन, जो ऑर्डर आता है वो एक बार जो ऑर्डर को कलेक्टर देता है उसकी अपील भी नहीं होती है, बड़ी पावरफुल एक्ट होता है, आपको पता ही है। डीआरटी का जो डीएम का जो ऑर्डर होता है, उसको लगता है कि एक सिंपल ऑर्डर है, पर इसकी इट इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर। ये बड़ी जोरदार चीज है, एक्ट में लिखा हुआ है। अपन देखते ना, एक सिंपल कलेक्टर का ऑर्डर है, तो आईएएस ऑफिसर है, यंग आईएएस ऑफिसर है, दे दिया ऑर्डर कोई भी, पहले तो सुनने की पावर भी नहीं होती थी। पहले हम जब इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड, तो ये लोग बकायदा डेट लगी ये भी सुनने लग जाते थे कोर्ट की तरह, कि हाँ भी बोरोवर को बुलाओ, वहाँ भी तुम्हारी क्या बात है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, सर्विस एक्ट में बैंकों को पूछते हैं कि तुमने क्यों दे दिया, तुमने, मतलब बैंक वालों को भी खिंचाई करना चालू कर देते थे। देन वी डिस्कस एट लेंथ, तो हमने इनको बताया, इम्प्रेस अपॉन किया रेगुलेटर्स को, कि मैंने कहा दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, आपको सुनना ही नहीं है, तभी तो एक्ट पावरफुल होगा। आप सुनने लग जाओगे फिर टाइम लगेगा, फिर टाइम बाउंड आया कि भाई आपको 30 दिन में ऑर्डर देना है, और एट दी मोस्ट 60 दिन में ऑर्डर देना है, ये नहीं कि लेके बैठ जाओ, आपको प्रोसीडिंग डिले नहीं करनी है। सब चीज मैथमेटिक्स की टाइम दे दिया, जिस तरह भी डीआरटी को भी टाइम दिया, डीआरटी को भी टाइम दिया, डीआरटी का 180 दिन का टाइम है, तो उस तरह से डीएम के लिए भी बकायदा लिखा है उन्होंने कि 30 दिन में आपको ऑर्डर करना है, एट मोस्ट 60 दिन के अंदर ऑर्डर देना है। और जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, आपको उसके अंदर कुछ भी नहीं देखना है, बुलाना भी नहीं है आपको, तो 13(2) देखना है, सर्व हुआ, आप एडी की प्रूफ लगाओ, अभी तो एडी रजिस्ट्रेड की हमने सर्विस हो गया है, बस दैट्स ऑल। इसके बाद 13(4) आप करिए, इसमें पावर लिए। ओवरराइडिंग इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ इट इज नॉट ओनली मोड ऑफ रिकवरी, इट इज ओवरराइडिंग इफेक्ट। ओवरराइडिंग इफेक्ट है, पावरफुल एक्ट है, ऑथराइज ऑफिसर का पावर है, कंस्ट्रक्शन की पावर है,
4 प्लॉट बने हुए हैं, 3 पोजीशन में मॉर्गेज किए हुए हैं, एक प्लॉट अलग करना है तो किसी को वहां जाने की जरूरत नहीं है। उसको ऑथराइज ऑफिसर खुद ही बीच में दीवार बनाएगा और ऑप्शन करके तीनों भेज देगा। उसको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। He himself is a very powerful, not below the scale 4 चीफ मैनेजर जो बैंक्स में होते हैं, उनका स्केल 4 भी किया हुआ है। क्योंकि कई प्राइवेट बैंक्स में जैसे लाइक IDBI और भी बैंक है, उसमें वो AGM या DGM लेवल पे होते हैं, वो चीफ मैनेजर होते हैं। या आरआरबीज में कई बार DGM चीफ मैनेजर लेवल स्केल 4, तो स्केल 4 भी इंपॉर्टेंट है इसमें। स्केल 4 ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ स्केल 4 ऑफिसर, ही इज ऑथराइज्ड ऑफिसर, ही कैन डू वो सारी एक्टिविटी उसके ज्यूरिसडिक्शन में रहती है और वो अंडर हिज सिग्नेचर ही काम करता है और कंसल्टेंट भी अंडर हिज एडवाइस ही काम करता है। अब लीगल नोटिस क्या तरीके हैं इसके अंदर जो सर्विसी एक्ट में है। इंटीमेशन जो बोरोवर को दिया है, दैट इज एप्लीकेंट को एप्लीकेंट को दिया हुआ है, एड्रेस पे दिया हुआ है, वो भी लीगल नोटिस है, 13(2) का नोटिस है। जो SP को दिया है अपने पोजीशन के लिए, DM का आदेश आया, वो भी एक लीगल नोटिस है जो SP के थ्रू दिलवाते हैं अपन को। बोरोवर देता है पोजीशन के लिए, इसमें डिमांडिंग एक्ट में लिखा हुआ है। जो ये इसमें बहुत सारी चीजें RBI ने भी इसको एनालिसिस करता रहा, क्योंकि लोगों ने शिकायत थी कि सब ICICI बैंक हमारे साथ ये कर रहा है, उस बैंक ने ये कर रहा है। तो नई नई चीजें इवॉल्व होती रही कि साहब नए नए कोड ऑफ कंडक्ट बनते रहे और RBI भी बहुत कुछ करता रहा। वो कई चीजें, एक्ट तो छोटा सा है, 42 सेक्शन का है, बड़ी छोटी सी किताब है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है एक्ट तो, लेकिन उसमें उन्होंने कह दिया कि बोरोवर से आप डिमांडिंग पोजीशन लोगे, पहले बोरोवर को बताओगे हम इस तारीख को इस डेट को आएंगे, हमने इस कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, वी अपॉइंटेड सो एंड सो पर्सन एज ए कंसल्टेंट, दे विल बी कमिंग, हम इस तारीख को आएंगे पोजीशन लेने, इस दिन का पोजीशन लेके आप पीसफुल करें और पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे, कंसर्निंग SHO थाना को करेंगे, सारी चीजें मैनेज करके ये प्रॉपर्ली इसको इस तरह से काम किया अगर लीगल नोटिस के थ्रू दिया जाएगा, वो भी डिमांडिंग पोजीशन बोलते हैं इसको। एंड प्रॉपर्ली पंचनामा बनाया जाएगा इन केस ऑफ दी, पंचनामा दोनों कैसे बनेगा, मूवेबल इमूवेबल, और पोजीशन नोटिस जो होता है दैट इज इम्पोर्टेंट, और इन्वेंट्री बनाई जाती है मूवेबल केस में, जैसे यहाँ स्टॉक हाइपोथेकेट होता है तो उसमें इन्वेंट्री पूरी बनाई जाती है। पोजीशन नोटिस लीगल नोटिस भी है 13(4) का, और ये चीजें आपको बता चुका। 30 डेज नोटिस भी, अगेन नोटिस जब भी अपन ऑप्शन करेंगे तो 30 डेज का नोटिस जाएगा, बोरोवर गारंटर को सबको जाएगा। पब्लिकेशन भी होगा इन 2 न्यूज़पेपर हैविंग सफिशिएंट सर्कुलेशन इन द एरिया वेयर प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। फैक्ट्री जहाँ है उसी जगह पे निकलेगा, ये नहीं कि कहीं भी निकाल दें। लीगली तो इसमें सर्फेसी एक्ट में लिखा हुआ है, लीगल रिक्वायरमेंट है उसी जगह जाएगा। अब देने में आप पूरे आसान सर्कुलर में दे दें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का ये है, प्रावधान एक्ट में कहा हुआ है ये वाला। DM कोड एप्लीकेशन अगले जो लगाया वो भी लीगल नोटिस है। ऑक्शन नोटिस जो है वो भी जब लीगल नोटिस है, बाद में एक बार ऑक्शन नहीं हुआ तो अगेन नॉट 30 डेज, 15 दिन का नोटिस भी सफिशिएंट होता है इनके एक्ट के हिसाब से। टीम क्या रिक्वायर्ड है इसके अंदर, कंसल्टेंट्स चाहिए वो अंडरस्टैंड द एक्ट, एडवोकेट्स, लॉ ग्रेजुएट्स, सिक्योरिटी गार्ड्स भी कई बार चाहिए होते हैं क्योंकि पोजीशन लेने के बाद में वहाँ पे पोस्ट करने पड़ते हैं, तो वो भी ऑथराइज एजेंसीज होती हैं, उनके भी एग्रीमेंट बैंक से होते हैं, नहीं तो वो लिखा पढ़ा करके सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। देन देयर इंश्योरेंस सर्वे, कई बार कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है, तो वो अनइंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड है बैंक के पास पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज उसको इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भी चाहिएगा। देन उसकी जो इन्वेंट्री बनेगी इट हैज टू बी नोटरी अटेस्टेड। वैल्यूअर भी होगा क्योंकि वो नापा जो की प्रॉपर्टी की होगी उस समय वैल्यूअर की एक्सेस रहेगी, बाद में प्रॉपर्टी को अपन लॉक एंड की में बंद कर देंगे तो देन वैल्यूअर दोबारा जा नहीं पाएगा, तो अंदर से इंटरनली उसको देखने के लिए प्रॉपर्टी को, या मशीनों का इंस्पेक्शन करने के लिए, या स्टॉक का करने के लिए तो वैल्यूअर भी एक चाहिएगा, और लेबर आदमी भी चाहिए होते हैं प्रॉपर्टी को सीजिंग और लॉकिंग वगैरह प्रॉपर्ली करते हैं। क्योंकि इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे कई बार यूनिवर्सिटीज बड़ी बड़ी आजकल, जैसे इवन ट्रस्ट में यूनिवर्सिटीज होती हैं और उनके हॉस्टल्स भी होते हैं, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं, इवन दे आर हैविंग मेडिकल कॉलेजेस और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, TT कॉलेज भी होते हैं इनके, और मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन MBA के भी होते हैं, एक ही प्रीमाइसेस में होते हैं, तो उनका पोजीशन वगैरह लेना बड़ा इट्स वेरी टिपिकल, लेकिन फिर भी उनका भी पोजीशन भी होता है और उनका भी ऑप्शन होता है और उनसे रिकवरी भी होती है। प्रॉपर्टी वर्थ इन करोड्स, 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां होती हैं, उनको भी सर्फेसी एक्ट में कार्रवाई करके किया जाता है। ये मैंने आपको ब्रीफली सब चीजें बता दी है, हाउ फोर्सफुल पोजीशन इज बीइंग टेकन। ये पोजीशन का जो है प्रैक्टिकलिटी IBC में भी काम इन्हीं लाइंस पे ही काम करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है कि
मूवेबल एसेट्स में मैं बता देता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस और पंचनामा मस्ट बी ड्रॉन एंड इन्वेंटरी मस्ट बी मेड। ये इसमें मैंने आपको बता दिया प्रैक्टिकली ये चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लोग अभी तक तो जो एसेट्स में या प्रॉपर्टी का भी करते थे, लेकिन बुक डेट्स को लोग डाइवर्शन कर लेते थे कई बार, या रिलेटेड पार्टी में डाल देते थे, जिसको अपन आईबीसी में जो सेक्शन है 40, 45 वगैरह जो है 50, जिसमें एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शंस या वो ट्रांजेक्शंस को जिसमें देख के अपन फॉरेंसिक ऑडिट भी कराते हैं और उनकी भी रिकवरी अपन वहां से करवाते हैं कि सब वो जो ट्रांजेक्शंस रिलेटेड पार्टी के हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन से एप्लीकेशन शिफ्ट हुई है फ्रॉम लास्ट 2 years, तो वो इसमें भी ये सरफेसी में भी ये प्रावधान था कि डेटर्स को भी नोटिस दे सकते हैं अपन और उनसे भी पैसा रिकवर कर सकते हैं। सिक्योर्ड डेटर उनको भी नोटिस देगा कि हमने जो बोरोवर है इसने जो पैसा है ये माल है आपको बेचा हुआ है, सो मच अमाउंट इज रिकवर्ड, यू सेंड डायरेक्टली टू आवर अकाउंट। कई बार वो नए अकाउंट दूसरे खोल लेते हैं बोरोवर, बोरोवर सिक्योर्ड के जैसे पैसा उसके पास डाइवर्शन करने का तरीका क्या है, दूसरा अकाउंट खोल लेगा दूसरे बैंक में, वहाँ डाइवर्ट कर लेगा। लेकिन अब तो आरबीआई ने एक्ट भी बना दिया है रिसेंटली, अगस्त 2020 में एक्ट आ गया है कि कोई जिसका लोन अकाउंट है आरबीआई का दूसरा अकाउंट कहीं खोल ही नहीं सकता। आपके पास भी नोटिस आ रहे होंगे कहीं से, बैंक की एफडी की भी लिमिट ले रखी होगी आपने थोड़ी सी भी, चाहे ₹1,00,000 की एफडी की लिमिट ले रखी हो तो भी आपका नोटिस आ जाएगा दूसरे बैंक का कि ये वाले करंट अकाउंट बैंक वाला बंद कर देगा या फिर आपको नोटिस भेज देगा। तो ये थिंग्स आर नाउ इम्प्रूविंग, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, पर ये मैंने एक बार आपको बताया कि इसमें डेटर्स को भी अपन नोटिस देके रूल 45C1 एक सब सेक्शन है, मैंने इसको एक्ट में से निकाल के छोटा सा बना के लाइन में बना के डाल दिया है, डिटेल में लिखा हुआ है एक्ट में, तो ये रूल में क्या कहा गया है कि डेटर से भी सरफेसी एक्ट में वी कैन रिकवर दी मनी। अब ये बहुत छोटा सा मैंने एक समरी एक बना दी है कि क्या प्रोसीजर रहता है सरफेसी एक्ट को समझने के लिए। 13/2 को नोटिस दिया, डिमांडिंग पोजीशन नोटिस दिया, पोजीशन ले लिया 13/4 में, पोजीशन सिंबॉलिक लिया हुआ है तो एक्चुअल पोजीशन के लिए डीएम में एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 14 में, और फिजिकल पोजीशन लेने के लिए भी और मेंटेन करने के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन ने एक बार तो ले लिया, बाद में पता चला ताला तोड़ के फिर वो घुस गया, तो हर बार दोबारा थोड़ी परमिशन लेने जाते रहेंगे, फिर थोड़ा दोबारा टाइम थोड़ा खराब करेंगे। तो वो सेम जो डीएम ऑर्डर है उसी के अंदर ही दोबारा उसी के अंदर ही इसका पोजीशन रिपोजिशन ले लिया जाएगा और कार्रवाई होगी। देयर आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स होगा, वो कैसे होगा, वो बैंकों का अलग अलग प्रोसीजर है, दैट ऑन द बेसिस ऑफ दोस प्रोसीजर वैल्यूएशन होगा और देयर आफ्टर ऑक्शन विल बी डन। तो ये मैंने एक समरी प्रोसीजर की मैंने आपको बता दी है। और कुछ राजस्थान के हाई कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, मैंने पर्टिकुलरली राजस्थान के जो मुझे याद हैं जो प्रैक्टिकली हम काम में लेते हैं, मैंने वो लिखे हैं कि जैसे मोहनदास द्वारका प्रसाद, ये सब वो पुराने केसेस हो गए हैं और ये सब चीज़ें अब सेटल्ड भी हो गई हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जब सिविल कोर्ट को पावर नहीं है उनके ऊपर है ये केस। सत्यवीर टंडन का मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें क्रक्स जो लाइन है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने कहा है, बेसिकली उन्होंने यही कहा है, इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, द सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, दैट डिस्पाइट रिपीटेड our pronouncement of this court, the high courts continue to ignore the statutory remedies available under DRT Act. सरफेसी एक्ट में जो DRT Act में कहा गया है उसको छोड़ के भी, and they are giving the stay regularly, they are hearing, तो उनको सुनना ही नहीं है। They are, I hope, उसमें ये भी लास्ट में लिखा है, hope and trust in future the high court will exercise their direction in such matter with due care and scare circumstances। मतलब they are एक तरह से हाई कोर्ट पे एक तरह का बिल्कुल बड़ा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर बड़ा लिखा है, इसको हर आदमी इसको कॉपी पेस्ट करके लगाता है, तो हाई कोर्ट में लगाता है, तो हाई कोर्ट वाकई में इसको सुनता भी है, सत्यवीर टंडन लेके आता है। एक बार मैं वैसे बैठा बैठा एनालिसिस कर रहा था कि मैंने ये कोर्ट्स के ऑर्डर देख रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 39 लोगों ने मतलब इसको इस केस को लगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टे के वेकेशन के लिए लगाया था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये। तो इसको मैं समरी में ले लिया मैंने। इसका जो जुरिडिक्शन है अपील का सरफेसी एक्ट में वो डीआरटी में ही है, सेक्शन 17 में ही जाएगा, वो भी जाएगा उसी प्रोविजंस में जाएगा, अपील भी करनी है तो उसमें ही जाएगा, और वो भी तब करेगा जब 13(4) इनिशिएशन हो जाएगा, 13(2) में नहीं जाएगा। और कोई एक्शन अगर बैंक ने ले लिया है इससे तो उसमें अपील का प्रावधान नहीं है, अनटिल अनलेस 13/4 या सिंबॉलिक भी हो गया हो या एक्चुअल हो गया हो, देन ही कैन मूव एप्लीकेशन, सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन ऐसे मूव करेगा अंडर सेक्शन 72 DRT। सेक्शन 19, सेक्शन 18 अपील टू DRT है। अभी आऊंगा। सेक्शन 19 जो है वो कंपनसेशन का है कि अगर अपना प्रोसीजर में कहीं भी कोई गलत हो गया
तो उसको सारी कॉस्ट वगैरह जो भी लगी है वो तो रिवर्स होगी, प्लस कंपनसेशन भी सिक्योर्ड क्रेडिटर को देना पड़ सकता है, और वो देते भी हैं, लगा भी देता है कॉस्ट कोर्ट। क्योंकि कोर्ट क्यों लगा देता है? क्योंकि वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ है, तो उसकी कंप्लायंस भी वेरी मेटिकुलसली ढंग से होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी, कोई भी ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस में कमी रह जाए, तो कंपनसेशन कॉस्ट आराम से लगाता है डीआरटी। और ये कोर्ट्स ने भी कह दिया है, स्वास्थ्य वाले केस में, एसबीआई वाले केस में इन्होंने कह दिया मोर स्ट्रिंजेंट द लॉ, मोर स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन देयर ऑफ वुड बी नेसेसरी, एंड नॉन कंप्लायंस और रिस्ट्रिक्शन वुड विशिएट द प्रोसीडिंग ऑल टुगेदर। ये उन्होंने कह के बड़ा स्ट्रिक्टली इसको व्यू लिया हुआ है। दिस इज द केस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो हम लोगों ने, ये हमारा एक केस था जिसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, तो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डेट, और इसमें भी आईए का भी चक्कर होता है, जो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन भी होती है, जैसे एप्लीकेशन जो डीआरटी में लगती है तो उसमें भी फिर सुनता है, वो बीच में एप्लीकेशन लगती रहती है तो उससे डिले होता रहता है। तो उसमें जो कोर्ट्स ने क्या कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए, मेरिट में चले गए थे, तो उसने कहा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो प्रिसाइडिंग जज को बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो डीआरटी का जज है उसमें एक जज होता है, और डीआरटी में भी एक होता है। हाई कोर्ट में यूजुअली डीवी भी होती है, लेकिन इसमें सिंगल रहते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल डिसाइड as far as possible within the statutory period of 60 days and at the most plus 60 days, मतलब 60 दिन में करेगा, 2 महीने में अगर कोई बात हो गई है तो उसको एक्सप्लेन करेगा ऑर्डर में कि भाई मुझे टाइम क्यों लगा है, और उसको 120 दिन में, 4 महीने में डिस्पोज ऑफ कर देगा। और अपील कोई पेंडिंग है, सेफगार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज पासिंग द रिपीटेड इंटरिम ऑर्डर्स, ये भी कहा है कि बार बार उसको इंटरिम ऑर्डर को देते हुए उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये नहीं कि आप उसी की व्यू लेते हुए इसमें आप चलते रहे। और फेल्यूर टू डिसाइड द इशू विद इन अ स्टैट्यूटरी पीरियड, स्टैट्यूटरी पीरियड उन्होंने कह दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, शोज इनएक्शन और इनकॉम्पिटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, हालांकि खूब डिले चल रहा है, 10-10 साल से भी केस चल रहे हैं, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं है कि पीओ का वर्किंग इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी, आई टेल यू कि नहीं होती है वाली। पर अब ठीक है, चल रहा है, ऐसा कंट्री में चल रहा है, इसमें आवाज उठनी चाहिए। और आवाज तो इसलिए भी उठनी चाहिए क्योंकि डीआरटी का जो एक्ट है, क्योंकि अभी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी का आने वाला है, अभी रुक गया, अभी अपना जो है बिकॉज ऑफ कोविड रुक गया, वो आएगा, वो सारा काम जाएगा डीआरटी में। और डीआरटी में हु कैन अपीयर, मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें भी प्रोफेशनल अपने यहाँ पे, मेरे ख्याल में आई थिंक एडवोकेट तो है ही नहीं, या तो सीए हैं या सीएस हैं, दे कैन नॉट अपीयर बिफोर देम, उनके लिए अपीयरेंस, वी कैन अपीयर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल जा सकते हो आप एनसीएलटी वहां जा सकते हो, बट इन दिस इज आल्सो ट्रिब्यूनल डीआरटी, लेकिन यहाँ नहीं जा सकते। क्योंकि क्यों नहीं जा सकते? एक्ट में कहा हुआ है, एक्ट में उन्होंने लीगल एडवोकेट को कर रखा है, मैं बताऊंगा आपको लैंग्वेज। फिर उन्होंने ये ऑर्डर पास करके कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर उनको चेयरमैन को भेजा, डीआरटी का चेयरमैन भी एक सिंगल चेयरमैन होता है इनके यहाँ पे, जो सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट लेवल का जज होता है, वहां से एलिवेटेड हो जाता है, फॉर सर्कुलेशन टू ऑल द पीओस इन इंडिया और डीआरटी फॉर देयर कंप्लायंस, कि यार आप ध्यान रखो, इसको इस तरह जल्दी करो, रिकवरी है जो है, हिंड्रेंस मत बनो आप, क्योंकि हिंड्रेंस थे बैंक कोर्ट्स थे, तभी तो ये सारी चीजें, सारी पावर उनकी सेपरेटली ऑथराइज ऑफिसर को दी है, और अपील का प्रावधान भी सिर्फ डीआरटी में लगा। आप लोग भी टाइम लगाओगे तो कैसे रिकवरी आएगी बैंक की? देन सेक्शन 13(8) इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो भी कॉस्ट, चार्जेस और एक्सपेंसेस हैं, दिस विल बी रिकवर्ड फर्स्ट। जैसे जस्ट लाइक आईबीसी में जो था, ये भी उन्होंने भी 2002 में कहा था कि जो भी अपन जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के एक्सपेंसेस सबसे पहले वो रिकवर होते हैं, इसमें भी वही है कि कॉस्ट, चार्जेस और रिकवरी एक्सपेंसेस फर्स्ट, देयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड देयर आफ्टर प्रिंसिपल, ऐसे रिकवरी का पैटर्न इसमें चलेगा। और कोर्ट ने भी इसको कर दिया है, कोर्ट केस के थ्रू। एंड दीज आर द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ द बैंक ऑफिसर, ऑथराइज ऑफिसर, जिसको मैं, क्योंकि टाइम भी अपना चल रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा सम अप जल्दी करना चाहता हूँ मैं, तो इसको नहीं बता रहा क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसीजरल शेप में है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। पर जैसे जवाब देना, 13 दिन में जवाब देना, वो मैं आपको ब्रीफली बता भी चुका हूँ। ऑप्शन से पहले कैसे करेगा, जैसे एनकम्प्रेंसेस भी चेक करनी होती है ऑथराइज ऑफिसर को, क्योंकि उसमें अगर एनकम्प्रेंसेस है, मीन्स जैसे कोई रिको का प्लॉट है, तो वैसे अपने को भी करनी पड़ती है एज ए आईबीसी, अगर कंसल्टेंट होंगे तो रिको का, या मतलब एसएफसी, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई अलॉटमेंट है तो उसका ड्यूज कितना है, बिजली का ड्यूज कितना है,
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अलावा वाटर डिपार्टमेंट, PHED पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का इतना ड्यूज है, या कोई प्रॉपर्टी नगर निगम है तो उसका ड्यूज है, तो उसका ड्यूज का या तो आप लिखोगे ज्ञात नहीं है, नॉट नोन एनकम्बरेंसेस, या उसको आप मेंशन, बेटर लेगा अगर आपको पता चल गया तो आप यू मेंशन इट, और या फिर आप मालूम करके उसको लिखिए। तो ये भी सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि ऑक्शन क्यों किया जाता है, ऑक्शन एक्ट में जो लिखा हुआ है वो खाली वसूल का नहीं जाता, इट इज फॉर द ऑब्टेनिंग द फेयर प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्ट ये बोलता है इसको ऑक्शन क्यों जाता है कि फेयर प्राइस आए अपने पास में, क्योंकि हालांकि ये रिकवरी टूल सब मना करते हैं कि रिकवरी टूल नहीं है, पर हालांकि ये तो बिल्कुल हार्डकोर रिकवरी टूल है। IBC में बोलते हैं ना कि दिस इज नॉट ए रिकवरी टूल, प्रैक्टिकली वी अंडरस्टैंड कि दिस इज रिकवरी टूल, ऐसा ही रिकवर होना है, उससे और करना क्या है। ठीक है, प्रेस स्टार्ट भी होगा, उसको चलाएंगे भी, उसको करेंगे भी, और गोइंग कंसर्न भी कोशिश करेंगे, पर प्रैक्टिकली वी अंडरस्टैंड कि दिस इज रिकवरी टूल। इशू अ सेल सर्टिफिकेट, सेल सर्टिफिकेट का भी वैसे तो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज दे रखी है, जब सर्टिफिकेट ऑक्शन कर देंगे इसको, सेल सर्टिफिकेट एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, आपने यू हैव टू वेट इट, एंड उसको देंगे, फोटोज भी लगेगी ऑथराइज ऑफिसर की एंड दी परचेजर की, एंड देन इट विल बी रजिस्टर्ड बिफोर दी सब रजिस्ट्रार ऑफिस। तो लेकिन इसके अलावा कहीं जैसे गुजरात स्टेट है, वहाँ पे अलग नियम चल रहे हैं, वो कहते हैं हम उसको रजिस्ट्री भी बनाएंगे, जैसे जो बायर जैसे सेलर की जो नॉर्मल रजिस्ट्री होती है। ठीक है, वो तो ये तो बनता ही है, उसको भी करा लेते हैं लोग। ये एक 13 का नोटिस मैंने बताया है, और ये एक कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया है, बहुत पुराना है वैसे। ये 3 बार 29 ये ब्याज नहीं आया तो खाता NPA हो गया, तो ये अमाउंट पकड़ ली हमने। फॉर एग्जांपल 19,68,077, ये अकाउंट पकड़ के जैसे जून 2019 में 9 में NPA हुआ, उसके बाद बैंक की रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन हुआ है, जस्ट आई एम शोइंग द कैलकुलेशन। उसमें मंथली इंटरेस्ट लग गया इतने का, ये टोटल मंथली का टोटल आ गया, अमाउंट जो क्रेडिट हुआ यहाँ पे आ गया, और देन देयर इज ए कॉलम ऑफ पीनल इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट ऑफ सर्टेन परसेंटेज, ये ऐड हो रहा है यहाँ, इसको साइड में लिखेंगे। फिर जो ये हर महीने के एंड में जो अमाउंट आएगी वो ओपनिंग अमाउंट अगले महीने के शुरू में आएगी, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और पेनल इंटरेस्ट साइड में रहेगा, वो ऐड नहीं होगा उसमें। ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए लगाई है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए हम लोग बैंकर्स को ही समझाते हैं, या जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि हाउ द डिमांड इज कैलकुलेटेड, क्योंकि डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन स्टोन है। अगर वो गलत हो गई तो सारा पूरा जो उस पर महल बना हुआ है वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो अगेन दिस केसेस, ये केसेस हम लोगों ने लड़ा था जिसमें हम लोग हार गए थे जोधपुर में, सारी पोजीशन वगैरह, और छोटा सा मामला था, जरा सी छोटी सी गलती की वजह से कि नहीं हुआ था। और इसमें एक चीज और भी बड़ी जोरदार है कि कई बार जो एप्लीकेंट होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मसला, हालांकि कि वो कई बार क्वेश्चन रेज नहीं करता, उसको पता ही नहीं होता। जैसे जो जजेस, जो अपना बोरोवर का जो एडवोकेट है, समटाइम्स वो जूनियर है, या उसको पता ही नहीं है कि क्या ऑब्जेक्शन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, उसको ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया होता। इवन देन DRT जज जो होता है वो हिमसेल्फ रेज द ऑब्जेक्शन। हमारे कई केसेस में होता है, हमको भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो तो एक्ट ने कहा हुआ है उसको। जो जजमेंट हुए हुए हैं, ये ट्रांसफर के जजमेंट है जो सब सत्याग्रह, उसमें सब में DRT को ही कहा गया है, सत्याग्रह में भी कहा हुआ है कि आपकी ड्यूटी है ये उसको देखना, प्रोसीजर में यू हैव टू सी चेक द प्रोसीजर, कि प्रोसीजर में कहीं भी फ्लॉटिंग हुई है, देयर इज सम कोई भी वायलेशन हुआ है, तो आपको देखना है, और आपको देख के उसको अंगेज में जजमेंट्स को स्टे देना है, बेसिकली ये कहा गया है। तो इस केस में भी ऐसे ही हो गया था। इसमें भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रविंद्र का जो केस था, इसमें इंटरेस्ट कंपाउंडिंग, जो पेनल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो गया था, तो बैंक वाले तो बेचारे फॉर्मेट में कंप्यूटर में ऐड करते हैं, तो उनको तो कंपाउंड होगा ही होगा, अनटिल अनलेस उसको एक्सेल में बना के किया जाए। तो आजकल के हर 100% केस में तो कभी कैलकुलेशन सही हो ही नहीं सकता अनटिल अनलेस कोई प्रोफेशनल को कैलकुलेट करे। तो ऑप्शन नोटिस जो था वो लीगल नहीं हुआ, और सारी कार्रवाई पोजीशन पे रिस्टोर हो गया, सब कुछ हो गया, और अल्टीमेटली बाद में बैंक ने परेशान होकर कंप्रोमाइज कर लिया उसके, मतलब उसको बैंक में उसको काफी नुकसान हो गया जो काम हो रहा था उनका, क्योंकि वो बैंक को फंड भी चाहिए होता है, तो केस हारने के बाद कंप्रोमाइज कर लिया। बहुत सारे कोर्ट्स ने कहा है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है इसको, सब कोर्ट ने इसको करके कहा है, तो इसको तो डिटेल्स के बारे में कि डिटेल्स कैसे होंगी, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, डिमांड नोटिस में लीगल नोटिस है, बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस है, उसमें मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, वो प्रोविजन को ध्यान में रख के करना है। तो डिमांड नोटिस अगर इलीगल हो गया, देन प्रोसीडिंग टेकन इन पर्संस ऑफ द सेड डिमांड नोटिस कैन नॉट सेड टू बी लीगल, तो उसको इस तरह कहा गया। और ये चार्ट सा है, वो नोटिस के नीचे लगाना पड़ता है इसको,
क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कैसे इंटरेस्ट अनअप्लाई इंटरेस्ट एडिट किया है, पिल इंटरेस्ट नॉट कैपिटलाइज कितना रिकवर्ड हुआ है, वो डिमांड नोटिस जाएगा, साथ में स्टेटमेंट जाएगा, देन 13/2 का नोटिस जो है वो वैलिड हो जाएगा। 60 दिन का नोटिस में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। देन कम्स टू अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन करने की पावर है, इट इज एज पर आरबीआई इट इज गिवन टू दी ब्रांच मैनेजर, बैंक मैनेजर, जो कहीं ऑथराइज ऑफिस की पावर भी नहीं है। किसी का खाता एनपी हो गया, पैसा आ गया, उसकी अगर आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर हो गया, मैनेजर चाहे या बैंक चाहे तो उसको अपग्रेड कर सकता है। लेकिन नुकसान क्या है कि इफ द अकाउंट इज अपग्रेडेड देन होल प्रोसेस ऑफ 13(2) वो सारा खत्म हो जाएगा। इट हैज टू बी स्टार्टेड डी नोवो, फिर वो सारा चीजें खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने, आरबीआई ने भी कहा है इनको, या बैंक खुद भी अपने रिकवरी पॉलिसी में लिखते हैं बार बार कि शुड नॉट बी स्टीरियोटाइप अपग्रेडेशन की। और कई बैंकर्स होते हैं वो बेचारे टेम्पटेशन में रहते हैं, यार खाता खराब हो रहा है, एक बार तो अपग्रेड कर दो, थोड़ा सा जमा करा दो, अपग्रेड कर दो, ठीक है। कई लोग नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अनटिल अनलेस पूरा खाता आ जाएगा, पूरा रिकवर करके बंद करेंगे, एनपीओ खत्म करेंगे, हम अपग्रेड नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है। तो ये इट इज डिट्रीमेंटल टू होल रिकवरी प्रोसेस। उससे दोबारा जो कॉस्ट वगैरह जो पहले के इनकर्ड होते हैं सारे वेव हो जाते हैं, सब कुछ खत्म होता है, फिर प्रोसीजर दोबारा स्टार्ट होता है। ये भी कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है, दिल्ली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, पुराना केस है। इसमें भी मैंने जो आपको बताया था कि टेस्ट टू बी कि कोई क्लॉज 4.4 में 424 का जो आता है, जो टेम्परेरी डेफिशिएंसीज होती है ना, डीपी कम हो गई, डीपी में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया, उस वजह से एनपी हो जाते हैं बहुत सारे, रिन्यूअल नहीं हुए। जो शॉर्ट रिन्यू करते हैं बैंकर्स, यूजुअली रिन्यू 3 मंथ्स का रिन्यू कर लेते हैं एक बार, तो देन 2 शॉर्ट रिव्यूज अवेलेबल बैंक को होते हैं, तो 3 महीने 2 महीने कर 2 बार कर लिया, फिर भी डिले हो गया, तो उस खाते से वो एनपी हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल्स उसने दिए नहीं बोरोवर ने। बैंक वाले भी क्या करेंगे, रिन्यूअल के लिए कई बार एनपी हो जाते, तो बेयरली ऑन दैट बेसिस खाता ठीक चल रहा है, प्रॉपर्टी भी है, आप सरफेसी एक्शन नहीं ले सकते। तो ये कोर्ट्स ने डिसाइड किया हुआ, तो मैंने कोर्ट का ये बात डाली है इसको, ये कहीं एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। जो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, इस केस में तो ये भी लिखा हुआ था, इवन इफ द डिफॉल्टिंग पार्टी फॉलोज शॉर्ट ऑफ पेइंग ₹1, कि अगर ₹1 भी कम रह गया है, मतलब जो भी गलती करने पे, और तो भी खाता एनपी है तो एनपी ही रहेगा, और उस पर सरफेसी एक्शन जो है वो जारी रहेगा। मतलब दीज थिंग्स वर टोल्ड बाय द कोर्ट। 13(4) के बारे में आपको बता दिया। आपको 13(4) में 13(2) जो नोटिस है वो इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सारी चीजें मैं आपको ब्रीफली एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। डिमांडिंग पोजीशन के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो पहले तो डिमांडिंग पोजीशन वो खुद दे देता है, तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन समटाइम्स वो पोजीशन नहीं हैंड ओवर करता है, तब फोर्सफुल पोजीशन लेना पड़ता है, तो सेक्शन 14 की रिक्वायरमेंट पड़ती है। These are the how we take the 13(4) position कैसे लिया जाता है, क्या डिटेल है, इसके बारे में आपको मैंने ब्रीफली बताया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। और पोजीशन एक कई बार होता है कि बोरोवर से ही लेना है या किसी और से भी ले सकता है, तो उसको भी कोर्ट ने कह दिया है कि पोजीशन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी पर्सन जो वहाँ पे अवेलेबल है, जरूरी है बोरोवर की साइन नोट कराना। कोई एम्प्लॉई है, कोई मैनेजर है, उसके भी अपन साइन करा लेंगे, पोजीशन ले लेंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वैलिड पोजीशन। वो भी आईबीसी में भी यही है और सरबीसी में भी पुराना है। ऐसा नहीं है कि कल को बोरोवर चला जाए या साइन नहीं करे तो उसका पोजीशन नहीं होगा, दैट विल बी, वो पंचनामा बनेगा, उसमें साइन होंगे, सब कुछ होगा, पब्लिकेशन होगा, तो वो वैलिड पोजीशन माना जाएगा। इसमें बिल्कुल सिम्बो, चाहे सिम्बोलिक हो चाहे एक्चुअल हो। अच्छा, लॉ टेनेंसी के बारे में बता दूं मैं कि जो लॉफुल टेनेंसी होगी, जैसे कोई अपन ने लोन दिया हुआ है तो उसमें लोन देते समय उसका जो है लीगल रिपोर्ट होती है या वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, उसमें पोजीशन भी देखा जाता है कि पोजीशन किसका है। तो अगर पोजीशन जो है, पोजीशन उसका अगर वैलिड पोजीशन है और वो पोजीशन अपना जो है किराएदार का अप्रूव हो रहा है, लिखित में आ रहा है, तो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही खाली करा सकते हैं उसको। उसको अपन लोग क्या है कि इसमें खाली नहीं करा पाएंगे सरफेसी एक्ट में, अगर वो पहले से मेंशन किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज एस्पेक्ट अपन को इसमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अगर अगर बाद में कई लोग इसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी करते हैं कि वो पोजीशन उसमें बाद में दिखा देते हैं कि वो सब किराए में दिया गया है, तो अगर किरायानामा बाद में लोन एग्रीमेंट के बाद का दिया हुआ है तो वैसे ही मान्य नहीं है।
तो उसमें उसमें किराएदार उसको इलीगल टेनेंट माना जाएगा और उससे वो खाली करवा लिया जाएगा, तो उसको सर्विस वर्क करेगा। लेकिन उसमें कोर्ट्स ने कर रखा है अगर लॉफुल टेनेंसी पहले की है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से हो जाएगा, या फिर एज ए सिंबॉलिक पोजीशन ही ऑप्शन होगा। तो फिर ऑप्शन कार्रवाई तो आगे तो फिर भी कर सकते हैं आदमी, लेकिन उसको वैसे खाली करा के लॉफुल तरीके से करके उसको आगे ऑप्शन किया जाएगा। अब फ्रॉड के केस में क्या होगा, समटाइम्स जो है डॉक्यूमेंट फोर्जरी होती हैं या डबल पट्टे होते हैं, ट्रिपल पट्टे होते हैं। तो इसमें क्या होता था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चलते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे वो चीजें कोई। लेकिन एक्ट ने क्या कहा है, एक्ट उसमें कहा है कि सरफेसी एक्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। देन वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कोर्ट्स में, नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं उसमें जाएगा। सरफेसी एक्शन के लिए जो है फोर्स डॉक्यूमेंट है उस पर सरफेसी एक्शन नहीं हो सकता है। इस बारे में गुजरात हाई कोर्ट ने भी एस के मुदालियर वर्सेस इंडियन बैंक केस में भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। टेकिंग पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको अभी है, इसको मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं चाहता हूँ कवर कर लूँ, इसको रिपीटेटिव ना करते हुए। मतलब ये अबाउट वी आर टेलिंग अबाउट द रीपोजिशन ऑफ द क्लॉज। रीपोजिशन क्लॉज भी होते हैं जिसमें सरफेसी एक्ट के बजाय उस क्लॉज इटसेल्फ में ही पोजीशन ले लिया जाता है रीपोजिशन क्लॉज में। तो रीपोजिशन क्लॉज के अंदर कैसे पोजीशन लिया जाएगा, या एसएफसी एक्ट में कई पोजीशन के क्लॉजेस होते हैं, उसके बारे में इसको बताया गया है। इसको भी मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली कोर्ट्स के जैसे कई केसेस हुए थे आईसीआई, सिंस वी आर गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ द लॉ, कोर्ट्स ने कहा हुआ है इन द कंट्री एंड द रिकवरी ऑफ लोन्स और सीजर ऑफ द व्हीकल्स कुड बी डन थ्रू लीगल मींस। तो इसी में तभी प्रोफेशनल बहुत बड़ा स्कोप है कि प्रोफेशनल ये काम करें, तो बैंक्स आर कंफर्टेबल विद प्रोफेशनल्स। इट इज देयरफॉर डिजायरेबल दैट बैंक्स रिलाई ऑन द लीगल रेमेडीज अवेलेबल अंडर द रिलेवेंट स्टैट्यूट्स व्हाइल एनफोर्सिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं है तो जो भी है तो बहुत ही लीगल रेमेडी और सिक्योरिटी की तरफ से किया जाएगा। और एग्रीकल्चर लैंड पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट केस हुआ था। उसके बाद तो अब देयर आर लॉट ऑफ केसेस। ये तो शुरू का केस था, गंजुला एग्जिम का केस हुआ था, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को था। देयर वाज ए सी फूड, वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी सी फूड में, एंड इट वाज एग्रीकल्चर लैंड। तो उसने पिटिशन लिया कि इन द खसरा खतौनी द रिकॉर्ड द लैंड द रेवेन्यू रिकॉर्ड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड इट इज एग्रीकल्चर लैंड, सो सरफेसी एक्शन कैन नॉट बी टेकन। लेकिन कोर्ट्स ने देखा कि इसमें क्या एक्शन हो रहा है, एक्चुअल में क्या चीज चल रही है, तो उसने देखा कि साहब इसमें फैक्ट्री चल रही है सी फूड की, तो उन्होंने उसकी कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी, इसको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी माना उन्होंने, और उसको कहा कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए लैंड एग्रीकल्चर लैंड फॉर उसको, और उस पे सरफेसी एक्शन के लिए उसको इट वाज नॉट ट्रीटेड एज ए एग्जम्प्टेड एसेट। तो ले लिया गया। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं, नेचर एग्रीकल्चर का होता है, पट्टे काट लेते हैं, और प्रैक्टिकलिटी में तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड के बीच में एरिया कन्वर्ट कराते हैं, और बैंकर्स या जो समझदार बैंकर नहीं होते वो ध्यान नहीं रख पाते कि इसमें जाएंगे कैसे, कल को ऑप्शन करना हो तो जाएंगे कैसे, आसपास क्या सराउंडिंग है। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, वो साइड से दिखती नहीं है फिर बाद में। वो कन्वर्शन पोर्शन को फाइनेंस कर देते हैं, चारों तरफ उसका एग्रीकल्चर लैंड होता है, तो वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दीज आर वो डिफरेंट चीजें हैं। पोजीशन ऑफ मूवेबल एसेट्स, उसको मैं आई एम जस्ट स्किपिंग पोजीशन पार्ट को। रिकवरी एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया, जो अपने आईवीसी में भी यही है कि जो खर्चे वगैरह जो होंगे कंसल्टेंट के होंगे पहले उन्हीं को ही पेमेंट होगा। देयर आफ्टर ये जो है बैंक अपनी रिकवरी जो है सेट ऑफ अपनी जो है इंटरेस्ट का और बाद में प्रिंसिपल का करेगा। सेक्शन इटसेल्फ 13.7 और 13.8 वो सेक्शन इटसेल्फ में उनको कर दिया गया है। और इसमें 13.8 में एक चीज, एक राइट ऑफ रिडेम्पशन भी डाला गया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है सारी एक्टिविटी रहती है, फिर बोरोवर आता है वापिस कि नहीं साहब मैं तो सारा खर्चा देने को तैयार बैठा हुआ हूँ, मेरे से आप जो बैंक का खर्चा होगा आप ले लो, मेरी तो एसेट्स आप देन यू प्लीज रिटर्न बैक माय एसेट बैक टू मी। सो इसमें एक्ट ने इटसेल्फ कह दिया 13.8 में कि राइट ऑफ रिडेम्पशन अगर वो ऑप्शन नोटिस होने से पहले और वो सब कुछ करने से पहले अगर आ जाता है, देन ही कैन पोजीशन कैन बी गिवन टू हिम एंड मनी और जो एक्सपेंसेस है वो देन कैन बी रिकवर्ड
कर लिया, क्योंकि बिकॉज बैंक इज नॉट ए प्रॉपर्टी डीलर, वो एसेट्स, सिक्योरिटी एसेट्स को बेचना उसका कोई काम नहीं है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है अपनी जो फंड्स की रिकवरी करना है, तो 13(8) में उसको राइट ऑफ रिडम्पशन भी दिया गया है। ये एक सेक्शन है इन केस ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन जो होगा, ये भी सरफेसी एक्ट में काफी पहले कह दिया था। द क्रेडिटर ऑप्ट टू रियलाइज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो रिलिंग्विश कर सकता है इस इंटरेस्ट को, देन ही मे रिटेन द सेल प्रोसीड आफ्टर डिपॉजिट द वर्कमैन ड्यूज विद द लिक्विडेटर एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 529A ऑफ कंपनीज एक्ट। 529A कंपनीज एक्ट का एक पुराना वाला सेक्शन है, तो 2002 में उस एक्ट में भी इन्होंने कह दिया था। देखो आप, ये बहुत बड़ी बात है, जो आज हम वर्कमैन ड्यूज और सारी बातें करते हैं, उन्होंने उस वक्त कह दिया था सरफेसी एक्ट में भी, इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन में है तो आप उसको रियलाइज कर सकते हो, पहले नहीं आ सकते आप, लिक्विडेशन में जाते हो। और अभी भी आईबीसी में भी इन्होंने सेक्शन 53A, मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन में भी आगे आ जाएगा, उसमें सेक्शन 52 और 53A ऑफ आईबीसी 2016 में आ जाएगा। उसमें भी उनको ये कहा है कि किस स्टेज पे आप उसको आप एसेट्स को लेके निकल सकते हो, या रिलिंग्विश, पहले तो ना अपनी एसेट्स को रिलिंग्विश करना, अपने आप को उसको कॉमन होश पोश में डालना, पहले तो ये था, और उसको रिकवर करना, और उसको किस स्टेज पे बाहर निकल सकता है आदमी लेके, सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको लिक्विडेशन स्टेज पे ले सकता है। यही बात इसमें इन्होंने सरफेसी एक्ट में भी कही है। ये आ गया सेक्शन, मैंने लिंक कर दिया। जो आईबीसी एक्ट का सेक्शन 52 है, उसकी लैंग्वेज भी है, आपको मैं सुना देता हूँ कि उसमें सब सेक्शन ए है, रिलिंग्विश इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिसीव प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट बाय द लिक्विडेटर इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 53। 53 मतलब वाटरफॉल मैनेजमेंट, जो आपको सबको पता ही है। वाटरफॉल मैनेजमेंट में पहले किसको मिलेगा, दोबारा किसको मिलेगा, ये गवर्नमेंट का तो नंबर ही आजकल सबसे पीछे 5वें नंबर पे डाल दिया इन्होंने, कोई मिलता ही नहीं इनको। तो रीलिंक भी करके या तो पहले ऐसा पैसा वसूल करेगा, या फिर वो लिक्विडेटर के स्टेज पे, शुरू की स्टेज पे तो कुछ कर ही नहीं सकता, 180 दिन तक या 270 दिन तक तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो पीरियड उसका मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा है बेसिकली, उसमें तो नहीं होगा। लेकिन लिक्विडेटर वाली लिक्विडेशन स्टेज पे वो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करेगा, अपना जो रजिस्ट्रेशन उसने कराया हुआ है, चार्ज रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उसकी कॉपी देगा। हालांकि शुरू में भी देगा वो कि मेरा रजिस्टर्ड चार्ज है, पहले का चार्ज है, ये मेरी एसेट्स है, उसको वेरीफाई करेगा। आईबीसी कंसल्टेंट जो आरपी होगा उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये एसेट्स इसकी है, उसको मेजरमेंट देख के कौन सी मेरे उसको बकायदा उसको एसेट्स को वो उसको दे देगा, और वो एसेट्स को अपनी वो बेच के और रिकवर करेगा। उसके बाद में वो कुछ पोर्शन फिर भी बच गया, तो वो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो होते हैं उस वाली लाइन में आगे खड़ा हो जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर, और उसको उस वाटरफॉल मैनेजमेंट कुछ पैसा बचेगा तो पैसे मिलेगा। अदरवाइज वो अपनी एसेट लेके अलग हो सकता है और वो रिकवर कर लेगा। सेक्शन 52 जो अपना इनकम आईबीसी एक्ट का जो बोलता है। कई बार सरफेसी एक्ट में ये भी क्वेश्चन आता है, और प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं कि बोरोवर की जो एसेट्स होती हैं, सपोज वो कई बार इंडस्ट्रीज होती हैं या बड़ी एसेट होती हैं, गारंटर के मकान होते हैं छोटे छोटे, खूब सारी बड़े लोन में बहुत बड़े लोन होते हैं, सिक्योरिटी होती भी नहीं है, तो 20-25%, 30% सिक्योरिटी होती है बड़े लोन में। लेकिन जो छोटे लोन होते हैं 2, 4, 5, 10 करोड़ के, वो यूजुअली 100% सिक्योर्ड होते हैं। बड़ी विचित्र बात है। और जो 500 करोड़ का लोन होगा उसमें सिक्योरिटी होगी 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन 10 करोड़ का 5 करोड़ का लोन होगा तो 100% सिक्योर्ड होगा, गारंटर भी होगा, उसको सब चीजें होंगी। तो कई बार वो कहते हैं कि आपने गारंटर की एसेट्स पे हाउ यू स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट दी गारंटर, गारंटर की एसेट्स अब भाई यू आर टेकिंग ओवर, तेरा तो नोटिस क्यों दिया, क्यों पोजीशन ले रहे हो, क्यों ऑप्शन कर रहे हो। तो कोर्ट्स ने भी कह दिया और सेक्शन में भी लिख दिया उसको 13(11) में कि सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर प्लेज एसेट्स टू बी सोल्ड फर्स्ट देन दी बोरोवर एसेट्स, पहले कार्य उस पर इस पे कर सकता है, एक्ट ने कर दिया है उसके अंदर। और उसमें ट्रांसफर तो वो भी गारंटर भी नहीं कर सकता, तो ये उसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। आरबीआई के रिलेवेंट सर्कुलर्स हैं, जो भी इसमें कंसल्टेंसी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने एक सर्कुलर का रेफरेंस दे दिया है कि आईआईबीएफ की ट्रेनिंग करता है, मैंने आपको बता भी दिया है। ये भी पुराना, ये टकरू हुआ करते थे फाइनेंशियल एडवाइजर, उन्होंने भी कह दिया, बहुत ज्यादा तो स्ट्रिक्ट थे, इन्होंने सर्टिफिकेट को बड़ा पावर दी। उन्होंने कहा कि आप सब एफआईआर, उससे पहले एफआईआर नहीं करता था बैंक, उन्होंने कहा बैंक्स को कहा कि बिकॉज ही वाज आईएएस ऑफिसर फाइनेंशियल सेक्रेटरी, तो फाइनेंशियल सेक्रेटरी ने कहा दिया आप तो एफआईआर करो डिफॉल्टर्स पे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी, तो जैसे उन्होंने कहा कि इट्स एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी, पैसा नहीं दे रहा है, तो इससे भी बड़े पावर मिली बैंक को, सरफेसी एक्ट को, और ये अच्छा काम हुआ। और सेक्शन 14 जो है मैंने आपको बता भी दिया है कि ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे घर मिलता है। देन
नेक्स्ट इज द ऑक्शन। ये ऑक्शन के लिए भी मैंने ब्रीफली आपको बता दिया था सब चीज़ों की। 13 डेज का ऑक्शन होगा, 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, एसेट्स का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होगा, मोरओवर गारंटर्स को नोटिस मैंडेटरीली जाएंगे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट से, और उसका सर्विस भी हो जाना चाहिए, इंश्योर हो देंगे अपन। या 2 अखबारों में न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, और उसके बाद में इफ पॉसिबल अगर मिल जाए कंसर्न रिजर्व प्राइस की तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बैंक की रिकवरी पॉलिसी के हिसाब से उसकी प्राइस फिक्सेशन होगा, मिनिमम रिजर्व प्राइस होगी, जो बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा बाय द बोर्ड। आरबीआई ने कह रखा है बोर्ड अप्रूव्ड वैल्यूअर, जैसे ऐसा होता है ना लोन देने वाला तो वैल्यूअर अलग हो गया, उसमें तो वैल्यू प्रॉपर्टी की कर दी 5 करोड़, और बाद में प्रॉपर्टी जब ऑक्शन करने जा रहे हैं तो देन प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹3 करोड़, तो समटाइम्स की वो दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके जो वैल्यूअर हैं वो दे आर डिफरेंट वैल्यूअर्स, क्योंकि वो अप्रूव्ड बाय द बोर्ड होते हैं अंडर सरफेसी एक्ट करने के लिए, वही वैल्यूएशन करते हैं। और वो भी वैल्यूएशन कई तरह से करते हैं, जैसे एक तो निकालते हैं फेयर वैल्यू, दूसरी निकालते हैं उसकी जो सर्किल रेट डीएलसी वैल्यू बोलते हैं जिसको, या सर्किल वैल्यू बोलते हैं। थर्ड वन निकालते हैं रिलायजेबल वैल्यू, कितने पे रिलाइज हो सकती है। फोर्थ वन निकालते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू, उसको भी 15% कम करते करते थर्ड नंबर पे 15% और कम कर देते हैं, तो वो करते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। तो उसपे यूजुअली बैंक जो करता है या फाइनेंशियल जो करना चाहिए, जो कोर्ट्स मानते हैं कि रिलायजेबल वैल्यू पे ही उसका ऑप्शन निकलना चाहिए ऑलवेज, और वही सबसे सेफेस्ट तरीका होता है। तो और उसको बाद में कम करने की पावर भी है वो बोर्ड की रिकवरी पॉलिसीज में, जैसे एक बार ऑप्शन नहीं हुआ तो बैंक को 10% उसकी वैल्यू कम कर सकते हैं, कमेटी सिस्टम होगा, रीजनल ऑफिसर होगा, वो सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो एक्ट में लिखी भी नहीं है। देन सेल ऑफ मूवेबल एसेट्स रूल 6 उसका बोलता है, वो भी 30 डेज नोटिस दिया जाएगा, और मूवेबल एसेट्स का सेल भी दिया जाएगा। अपनी वेबसाइट पे भी बैंकर जो है उसमें डालेगा, न्यूज़पेपर डालेगा, प्राइवेट टीटी से भी कर सकता है। सेल करने के तरीके हैं ये, तो मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया बिल्कुल एक बार। और शेयर सेल का सर्टिफिकेट है, तो इस पर ये भी है कि जैसे जब ऑक्शन करते हैं तो उसमें 10% जमा करके बिड अमाउंट आती है यूजुअली, और जब सरफेसी ऑप्शन करते हैं तो विद इन 24 आवर्स और विद इन वन डे उसका 25% जो हाईएस्ट बिडर होता है वो जमा कराता है, यानी 15% जमा कराता है। तो उसको अपन सेल कंफर्मेशन लेटर देते हैं, जिसके बेसिस पे वो कहीं लोन लेना चाहे तो लोन ले सकता है, कि उसको कंफर्मेशन हो गया कि वो प्रॉपर्टी खरीद ली, और विद इन वो 15 डेज वो पैसा जमा कराएगा। दिस कैन बी आल्सो एक्सटेंडेबल टू 3 मंथ्स, ऑथराइज ऑफिसर की पावर है, वो मैं आगे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये तो शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो बाद में जब पूरा पैसा जमा हो जाता है तो वो सेल सर्टिफिकेट जमा होता है, बना होता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये अपने आप में डॉक्यूमेंट है। सेल सर्टिफिकेट रजिस्ट्री नहीं भी करा दें तो भी डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड होना चाहिए। मोर देन ₹100 ट्रांसफर टीपी एक्ट है, वो आप लोगों ने भी सब में पढ़ा भी होगा, तो उसको सेल सर्टिफिकेट को ये रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो इसमें ड्यूटी भी लगती है, और लेकिन कई बार प्लांट एंड मशीनरी भी होती है। तो प्लांट एंड मशीनरी केस में क्या होता है, एक्ट ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी अपन एक्ट में बेच रहे हैं उसकी जीएसटी लगना पड़ता है, बैंक उसमें जीएसटी लगा के देता है, और जो प्रपोज बायर होता है उसको जीएसटी का इनपुट भी मिल जाता है। लेकिन इसमें कई बार बंडल ऑफ एसेट्स होती है, तो उसमें वो जीएसटी के जो प्रोविजंस होते हैं वो दोस प्रोविजंस अप्लाइड, तो उसमें जो मशीनरीज होती है इसमें यूजुअली 18% ही, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको, वो 18% ही जाके फॉल बैक होता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज 18% में जरूर होती है। तो हाईएस्ट रेट से लग के वो उसमें जीएसटी चार्ज करता है बैंक में, तो एडिशनल लेता है। तो क्योंकि मूवेबल एसेट्स की रजिस्ट्री नहीं होती है, सेल सर्टिफिकेट खाली लैंड और बिल्डिंग का बनता है। अब ये जो टेक ओवर और मैनेजमेंट का मैंने सेक्शन 15 जो है वो बिल्कुल दैट इज अकिन टू आईबीसी, मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। सेक्शन 13(4)B में जो पोजीशन लेते हैं उसमें बकायदा पब्लिकेशन होगा न्यूज़पेपर में कि प्रिंसिपल ऑफिसर ने अपॉइंट किया, जैसे इसमें अपन आईबीसी में जो जैसे एनसीएलटी ने अपॉइंट कर दिया अपने को एज ए रिजोल्यूशन आईआरपी या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, हम लोग भी एज ए आईआरपी कंसल्टेंट अपॉइंट कर सकते हैं, जो देख रेख करेगा कंपनी की। कंपनी के लिए कोई प्रॉपर एम्प्लॉय रखना है, प्रोडक्शन में रखना है, मैनेजमेंट में रखना है, मार्केटिंग में करना है, या लीगल आदमी करना है, या अकाउंट्स का आदमी करना है, चार्टेड अकाउंट को अप्लाई करना है, कंसल्टेंट को अप्लाई करना है, तो वो सारी पावर सरफेसी में भी थी। वो पावर थी अंडर सेक्शन 13(4)B में, कि वो बाकायदा पब्लिश करेगा, पब्लिक ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, पर्सन जितने करेगा, डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है, ये भी लिखा था उसमें एक्ट में, एडमिनिस्ट्रेटर को भी अपॉइंट कर सकता है बिजनेस के लिए। और पब्लिकेशन इसलिए करेगा कि डायरेक्टर को डीम टू बी
वेकेटेड देयर ऑफिस, अपने यहाँ बोलते हैं कि पावर सस्पेंड हो गई, तो उन्होंने लिखा था डीम टू बी वेकेटेड देयर ऑफिस, और कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ डायरेक्टर से, तो दैट विल बी टर्मिनेटेड। तो ये सारी चीजें 2002 के एक्ट में भी आ गई थी। और इसमें ये भी कहा गया था जैसे कोई कंपनी है तो ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर तो मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं वो डिसीजन लेके कुछ और डिसीजन कर लें, तो द शेयर होल्डर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, कैन नॉट डू एनी डिसीजन विदाउट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द क्रेडिटर। तो ये भी उन्होंने एक्ट इटसेल्फ में मेंशन कर दिया है। तो उसको पावरफुल बनाया। वो बहुत सारी चीजें थी, उन्होंने बहुत ही जो कमेटी थी बड़ी इंटेलिजेंट, देवर द इंटेलिजेंट पीपल, नसीमा कमेटी 1 and 2 एंड अर्जुना कमेटी जो थे, देवर प्रोबेबली देवर द साउथ इंडियंस, देवर आई थिंक मच मोर इंटेलिजेंट। उन्होंने सब चीजें उस समय लिख दी थी और कह दी थी। अपील के बारे में जो मैंने बता दिया था आपको, ब्रीफली बातें करते करते मैंने सारी चीजें बता दी थी। तो इसमें अपील के लिए बताया तो इसमें टाइम पीरियड एक ध्यान जरूर रख लें। 2 तरह की अपीलें हैं। सेक्शन 17 में तो है DRT में, और DRAT में, दैट अपीलेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में 18 में है, उसमें 60 दिन में करनी है ऑर्डर सर्विस के, और इसमें अपील करनी है 45 दिन में। और अपील का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऐसे है, ये जरूर याद रखें कि वो सिक्योरिटेशन एप्लीकेशन है, ये भी बिल्कुल टिपिकल चीज है। इसको सिर्फ एप्लीकेशन नाम दिया है और कोई फॉर्मेट भी एक्ट ने नहीं किया है। हालांकि 2 दिया है प्रोवाइडेड फॉर्मेट, एक्ट में लिखा हुआ है कि ये एक सजेस्टेड फॉर्मेट है, लेकिन कोई आदमी बिना फॉर्मेट के भी देगा तो भी इनको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो दिस इज नॉट ए लीगल थिंग, दिस इज एप्लीकेशन। और विद इन 45 डेज करेगा ऑफ सेक्शन 13(4), और किसी चीज में नहीं कर पाएगा वो। ऑनलाइन सेक्शन 34 जब होगा देन वो ट्रिगर करेगा, वो उसको अपील करेगा, जो भी मान लो उसको वो कर देगा। DRT कहाँ करेगा? जहाँ सिक्योर से लोकेटेड है वहाँ पे करेगा, यहाँ जहाँ ब्रांच में अकाउंट मेंटेन होता है वहाँ पे करेगा। तो इसमें भी आजकल क्या है कि लोग प्लानिंग करने लगे हैं, जैसे NCLT की प्लानिंग भी करते हैं ना। जैसे अब जो फंडिंग जो करते हैं, जो प्राइवेट बैंक्स हैं या जो नए बैंक्स होते हैं, जो या स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, वो अपने हेड ऑफिस में दिखाते हैं कि ये खाता वहां से मेंटेन्ड है, ताकि वो सेंट्रलाइज जगह से ही सारी लीगल एक्शन ले सकें। तो सेंट्रलाइज जगह में कुछ जितनी मैन पावर होती नहीं है, बैंक्स तो फिर भी कर लेता है, तो वो इसको एक्ट में लिखा हुआ है उसका फायदा उठाते हैं कि मेंटेन अकाउंट वहां रखते हैं, और वहीं से वो सारे लीगल एक्शन, वेदर सरफेसी एक्ट हुआ या DRT एक्ट में जाना हुआ या IBC में जाना हुआ, तो उस तरह से चले जाते हैं। और सेक्शन 7(3) होता है, मैंने आपको बता दिया बार बार कि वो मेजर 13(4) में लेते समय वो बिल्कुल लेटर और स्पिरिट में देखेगा कि कोई भी रूल में कहीं भी लेश मात्र भी गलती नहीं होनी चाहिए, और अदरवाइज सारी पेनल्टीज कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह जो है वो बैंक वो भुगतेगा। और डिस्पोज ऑफ भी DRDO का है कि भी इसको आप विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months आप डिस्पोज ऑफ करें, नॉट मोर देन 4 months। ये सब कागजों में है, लेकिन एक्ट के हिसाब से अपन को याद रखने के लिए जरूरी है कि विद इन 45 डेज अपील करेगा। जिस दिन 13/4 होगा, 13/4 के दिन से होगा, जो 13/4 का नोटिस हमेशा सर्व भी होगा, अपने को मिलेगा, चाहे सिंबॉलिक हो। सिंबॉलिक में भी अपन अपील में जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और सेक्शन 18 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसको 30 डेज में जाना है। जो DRT का जो ऑर्डर होगा, अगर अपने एंगेज में हो गया, क्योंकि कोशिश यूजुअली लोग क्या है, DRT का ऑर्डर एंगेज में नहीं करवाते हैं, क्योंकि इसमें प्री कंडीशन डिपॉजिट की है 50% की, वहां तो नहीं है। वहाँ तो जो मैंने बताया था मडिया केमिकल का पहले 75% थी, तो 2004 में हटा दी थी, लेकिन यहाँ पता नहीं है कैसे अभी भी चल रही है, क्योंकि गलत है, लेकिन चल रही है, अपन कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का रूल है, लॉ है कि प्री कंडीशन है 50%, लेकिन कोई आदमी एप्लीकेशन देता है तो इट कैन बी रिड्यूस टू 25%, विच इज वेरी वेरी हार्श प्रोविजन। अब इसके भी लोग रास्ते निकालते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन वगैरह इधर उधर करके लगा देते हैं अपील की बजाय, वो भी चल रहा है। तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बातें हैं, कानून के हिसाब से नहीं है। और इसकी कैविएट के लिए भी राइट टू लॉज कैविएट का भी सेक्शन में प्रावधान, अभी अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके अंदर इसमें भी है, सब में कैविएट एक्ट का प्रावधान है। तो 30 डेज का है, उसमें 45 डेज का है। ये 2-4 चीजें डिपॉजिट की प्री कंडीशंस का इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री, जिसको जो कॉन्टेंट ऑडिटर है दे अंडरस्टैंड इट, सरसई बोलते हैं। जो सरसई हर प्रॉपर्टी का सरसई भी होता है, प्रॉपर्टी को जो होता है कि प्रॉपर्टी जैसे जैसे सिविल में पैन नंबर से अपन किसी बोरोवर का मालूम कर लेते हैं, सरसई में जितनी भी प्रॉपर्टियां जो इसमें लोन हुआ हुआ है उसकी पूरी हिस्ट्री होती है। ये प्रॉपर्टी पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने फंड की थी, इतने रुपए की थी, ये लोन चुक गया, बाद में ये प्रॉपर्टी बोरोवर के नाम हो गई, बाद में इसने बोरोवर ने फिर OBC से लोन ले लिया, वहाँ ये मॉर्गेज पड़ी है। तो हर प्रॉपर्टी वाइज पूरा डेटा जो है वो सरसई में रहता है। उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है 2020 से, अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब ये लॉकडाउन से पहले ही हुआ था। और इसमें पेनल्टी भी लगा दी है, क्योंकि जो ऑफिसर हैं, बैंक ऑफिसर्स वगैरह या सिक्योरिटेटर, कि अगर वो सरसई में रजिस्टर नहीं करेगा
5,000 रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान इसके अंदर कर दिया है। तो ये और सरफेसी एक्शन करने के लिए भी मैंडेटरी कर दिया है कि आजकल पहले वो देखेंगे कि सरसई में ये सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी, देन if the property is registered, then the action then can take the action। और लीगल इसका जो इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन का भी, पब्लिक नोटिस का, वो भी सब चीजें इन्होंने क्लियर कर दी है। अब ऑक्शन से पहले की चेकलिस्ट क्या बनाए वो मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है। रिजर्व प्राइस कैसे फिक्स करनी है मैंने आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया है। ऑक्शन के बारे में भी मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ किया है कि ऑक्शन के जैसे पोर्टल, जैसे इनिशियली तो कैसे करें, ऑक्शन मैनुअल भी होते थे और बैंक की खुद की साइट भी होती थी, लेकिन अब नाउ डेज जैसे ई बिक्रा करके एक है जो MSTC जो कि कलकत्ता में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, जिसमें भी बड़े बड़े कोल ब्लॉक्स हो गए या और भी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सारी गवर्नमेंट का स्क्रैप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, तो उसी में ही सारे बैंक आजकल मेंबर बन गए हैं मोर और लेस ई बिक्रा वाली साइट पे। आप लोग भी अपनी वेबसाइट पे कभी देख सकते हैं, तो उसमें सारे ऑक्शन नोटिस उनको अपलोड करने पड़ते हैं और उसके अंदर जो बोरोवर होता है, सॉरी जो बायर होता है, एक्शन जो ऑक्शन परचेजर होता है, उसको भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बाकायदा KYC वगैरह दे के, और उसमें भी कई फंडेज होते हैं कि ये फर्म होगी तो GST नंबर होगा, और फिर वो प्रॉपर्टी का भी, हर प्रॉपर्टी का भी नंबर होता है, प्रॉपर्टी नंबर। उसमें जैसे अपन GST जमा कराते हैं तो उसमें अपना वॉलेट अकाउंट भी खुलता है, तो ऑक्शन बायर होता है वॉलेट अकाउंट में करके अपना पैसा NEFT करता है, पैसे डालता है, फिर उस पैसे से वो जो बिडिंग करता है 10% जो अर्नेस्ट मनी EMD बोलते हैं, या वो जमा कराता है और तब वो एलिजिबल हो जाता है उस प्रॉपर्टी को बिडिंग करने के लिए, तब वो उसमें बिडिंग करता है 10% रिजर्व प्राइस देने के बाद में। और पर्टिकुलर डेट के लिए जो टाइम और डेट का स्लॉट होता है उस डेट में वो खुला रहता है ऑप्शन, उसमें वो बिडिंग करके अपना वो प्राइस का बिडिंग कराता है। और उसमें एक जैसे ये होता है कि 5 मिनट का अंतराल जरूर रखते हैं ये लोग, जैसे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का हुआ तो 2 बजे से 1 मिनट पहले कई लोग आदमी बैठे रहते हैं, कई लोग बड़े शार्प होते हैं, वो वेट करते हैं जब जो लास्ट जो बिडर होता है उससे वो जो एक बिड इंक्रीज अमाउंट भी होती है, बिड इंक्रीज अमाउंट छोटे केस में जैसे 10,000 रुपए हो गई, उससे बिड उससे बढ़ेगी, बड़े केस में लाख रुपए हो गई और बड़े केस में 5 लाख होगी, मतलब एट ए टाइम जब भी बिड किससे इंक्रीज होगी तो वो बिड इंक्रीज अमाउंट करके वो 1 मिनट पहले लगा देता है। तो उस केस में उसमें उसको टॉलरेंस दी जाती है 5 मिनट की, ताकि जो फर्स्ट टाइम जो था वो दोबारा उसमें लगाता रहे। तो अगर वो दोनों बिडिंग करते रहते हैं तो ये चाहे इसको कितने भी घंटे चलती रहेगी, फिर ये रुकने वाली नहीं होती है ऑप्शन में। अगर 2 जने चले जाएं तो वो टाइम से भी आगे चलती रहती है। तो उसमें जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स 15% जमा कराना पड़ता है, हाईएस्ट बिडर जो सक्सेसफुल बिडर होता है। और बाकी 75% के लिए मैं आपको बताया था 15 दिन के लिए जमा करना पड़ता है। लेकिन रूल 9(4) में ऑथराइज ऑफिसर को बहुत बड़ी पावर दे रखी है, 3 महीने की पावर दे रखी है, जिसको हम बताते हैं समझाते हैं कि वो इनको यूजुअली पता नहीं होता है कि इनकी पावर में कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, उनको एक्ट कर रहा है तो वो आराम से उसको पावर दें ताकि अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन, मैं तो कह रहा हूँ ऑक्शन होने से पहले ही उसको बायर को बताएं कि तेरे को 3 महीने टाइम देंगे, तभी वो आएगा, वरना वो बिडिंग में लगाता ही नहीं है। उसको लगेगा मेरा तो 15% अगर पैसा नहीं दूंगा तो मेरा 25% जब्त हो जाएगा, कि वो कंडीशन होती है, वो कंडीशन पढ़ के ही वो हिम्मत हार देता है। जबकि ऐसा नहीं है, उसको 3 महीने का टाइम है, अगर पहले बात करके लगाई जाए कि हमको आप टाइम देंगे, हम लगा रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें सक्सेसफुल ऑप्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैंने इसको कई चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। राइट ऑफ रिडम्पशन मैंने आपको केस लॉ के साथ मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि अप टू द पॉइंट ऑफ सेल वो राइट ऑफ रिडम्पशन है, बायर को देना पड़ेगा। इस सेक्शन के बारे में आपको मैं ब्रीफ कर दिया है। इसमें हाई कोर्ट के केस भी हैं, ये एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये मैंने सरफेसी एक्ट को सर कवर कर लिया है, हालांकि टाइम नहीं है, मैं बहुत ब्रीफली DRT एक्ट जो है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1973 को भी कवर कर लेता हूँ। बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मैंने कई चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ कर दिया है। सेक्शन 1 उसमें था होल ऑफ इंडिया, इसमें एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर कर दिया है, 1993 से कर दिया है, और इसका नया नाम भी आ गया है, ये भी आ गया है 2016 में IBC का आने के बाद, क्योंकि उसमें IBC ने सबको इफेक्ट डाला है, सारे एक्ट को इफेक्ट डाला है ना। IBC जब आया तो हर एक्ट में कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला है। इसका नाम हो गया रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, क्योंकि अब ये बैंक्रप्सी का भी काम करेगा DRT, तो इट्स नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इट्स आल्सो ए बैंक्रप्सी एक्ट 1993। एक्ट का नाम 1993 रखा है अभी भी, लेकिन रिकवरी ऑफ डेब्ट्स करके उन्होंने इस तरह कर दिया है। और
डेप्ट की जो लिमिट थी अर्लियर इट वाज 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपए से ऊपर आता था कोई भी केस में रिकवरी करता था, लेकिन नाउ द लिमिट यूजुअली इसकी जो लिमिट है वो यूजुअल केस में 20 लाख रुपीस की लिमिट कर दी है, लेकिन जो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी होगी उसकी लिमिट अपनी आईबीसी वाली ही प्रिवेल करेगी। तो आईबीसी ने कहा हुआ इंडिविजुअल लिमिट, उसके ऊपर से कोई डेप्ट ड्यू होगा तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। इसमें भी 2 कमेटियां थी, नरसिम्हा कमेटी, तिवारी कमेटी, वो भी क्योंकि सरफेसी एक्ट तो बाद में आया, सबसे पहले तो ये आरडीडीबी एक्ट ही आया था, उससे पहले तो कोर्ट केस ही होते थे और रिकवरी होती ही नहीं थी बैंक में। तो ये 1991 में उन्होंने करते करते 93 में आया, इसके बारे में मैं ज़्यादा ब्रीफली आपको बता दिया मैंने। एक सेक्शन का मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन 2D इन्होंने बताया है लीगल प्रैक्टिशनर। तो कौन प्रैक्टिस कर सकता है डीआरटी एक्ट में, इसके अंदर तो उसमें लिखा है कि इफ असाइन टू एन एडवोकेट एक्ट, तो एडवोकेट एक्ट में जो रजिस्टर्ड हो वो भी कर सकता है, यानी कि सीए, सीएस, बाकी प्रोफेशनल लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। अब इसका भी रास्ता वैसे लोगों ने निकाल लिया है, कई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के चले जाते हैं कि हम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो भी कोर्ट मान लेता है, लेकिन लीगली लीगल प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर एडवोकेट अलाउड है। तो इसके बारे में भी आप लोग जो हैं एज ए ग्रुप, आप लोग भी, चलो आप तो स्टडी ग्रुप है, पॉलिटिकल ग्रुप को भी इसका इलेक्शन का टाइम आ रहा है, इसके अंदर करना चाहिए कुछ ना कुछ। गुप्ता जी ये भी एक कोई नेता इसमें खड़के करे तो वो भी अच्छे वोट ले सकता है प्रोफेशनल से। क्योंकि ये बड़ा मतलब ये फील्ड ऐसा है, इसमें किसी का ध्यान ही नहीं गया कि यार ये, क्योंकि मैंने बताया ना इनकम टैक्स भी ट्रिब्यूनल है, वहाँ भी सीए जा रहा है, कंपनी से दूसरे लोग भी प्रोफेशनल जा रहे हैं, डीआरटी एक्ट में कर रहा है, लेकिन ये भी ट्रिब्यूनल है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है। तो इसमें सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकता, उसके बारे में ध्यान रखना जरूरी, बहुत जरूरी है, क्योंकि बल्क केसेस आएंगे जब इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी काम चालू होगा, तो देयर विल बल्क केसेस, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन डू इट बेटर। तो कैसे, तो उनको तो एलिजिबल करना ही पड़ेगा इनको अब, लेकिन देखिए लेट्स सी क्या होता है। तो इसमें जो लेकिन ऐसा ना जी, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो तो जा सकेगा डीआरटी में, वो जा सकेगा या नहीं जा सकेगा, आप बताइए सर डीआरटी में। वो तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आईबीसी में तो लिखा हुआ, वो प्रिवेल करेगा, उसको जाएगा, उसके अंदर बिल्कुल जाएगा। हाँ। लेकिन आज की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, हाँ आइए आज की पोजीशन से, आज की पोजीशन के हिसाब से, लेकिन वहाँ का सब डर्रा अलग ही है सर, क्योंकि ये पुराने चलते आ रहे हैं सर, ये 1993 चल रहे हैं, ये दूसरे प्रोफेशनल की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, आई एम प्रैक्टिकल गिविंग द एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये जो पुराना जो चले आ रहे हैं उन्हीं को ही डीआरटी का जो चले आ रहा है, तो इसमें लेकिन अपन को फिर भी करना चाहिए साहब इसके अंदर। तो जो डीआरटी में जो एप्लीकेशन लगती है उसको ओए बोला जाता है, जो बैंक्स लगाते हैं ओरिजिनल ऐसे लगाते हैं, वहाँ पे अपील लगा देते हैं, अपील की ऐसे होती है जिसमें ओए होती है, और बीच बीच में जो एप्लीकेशन लगती है जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ केस होती है उनको आईए बोला जाता है, आईए नंबर इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस। तो ये दिस इज द इंटरलोक्यूशन, और इसी तरह से मिसलेनियस आईए भी लग जाती हैं जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, जो कि जो पहले डील होती है, जिससे कि डिले होता है, मैं बता रहा था डिले, पहले ये डील होगा, इसका ऑर्डर आएगा, फिर वो मेन केस को सुनेंगे, तो ये भी एक इसके भी ऑर्डर बनते हैं, हर आईए का ऑर्डर बनता है और वो वेबसाइट पे अपलोडेड होता है। वैसे डीआरटी की वेबसाइट होती है उसमें सारे अपलोडेड होते हैं, पुराने केसेस भी मिलते हैं, और रिटर्न स्टेटमेंट होता है, उसके लिए भी डिफेंस के लिए बोरोवर का होता है, उसको भी 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि वो 30 डेज में जवाब देगा, टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है, मतलब टेक्निकली आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो एप्लीकेशन कंटेंट क्या है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो जो ओए लगाएगा तो नेचुरली बैंक के एग्रीमेंट, लोन वो सब लिख के लगाएगा, है ना, और जो बोरोवर रिप्लाई देगा वो भी उसके एंगेज में देगा, जो भी देगा, पर एप्लीकेशन जो डिस्पोज ऑफ है, एक्ट ने क्या कहा है, विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज, इसमें भी 180 डेज का कंसेप्ट डाला हुआ है 1993 में, कि एक 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करनी है फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजल, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं होता। 1 पर्सन ओनली है कंपोजिशन ट्रिब्यूनल का, ये मैंने आपको बता दिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है पीओ को एक ट्रिब्यूनल का, और कई बार एक ट्रिब्यूनल का जज दूसरे ट्रिब्यूनल के जज करता है, जैसे अपने यहाँ पे भी हो रहा है, आईबीसी में भी जो एक टेक्निकल मेंबर, जुडिशियल मेंबर कई बार नहीं होते हैं, जुडिशियल मेंबर चंडीगढ़ का सुन रहा है, टेक्निकल मेंबर जयपुर में बैठा हुआ है, वो वीसी से सुन रहे हैं, तो प्रैक्टिकल 2 दिन लग रहे हैं, 2 दिन में भी पूरा मतलब काम नहीं के बराबर हो रहा है। आप देखो 1 जुलाई से सुनते हैं कि काम होगा इसमें, तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है इसमें भी। एक जो डीआरटी का जो जज होता है वो दूसरे डीआरटी के जज को भी पावर मिल जाती है, वो भी सुधारता है। और क्वालिफिकेशन डीआरटी के जज के लिए क्या है, वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर शुड बी ए लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज,
जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का जो जज होता है यूजुअली वो इम्पोर्टेंट है, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो उसकी रहेगी डिस्ट्रिक्ट जज की रहेगी, और जो पीरियड उसका जो होगा वो पीरियड 5 ईयर के लिए होगा, मतलब उसका अपॉइंटमेंट ही 5 साल के लिए होगा, वो 5 साल के लिए आएगा और वो कोर्ट में 5 साल के लिए बैठेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और या फिर वो एज अटेंड कर लेगा 60 ईयर्स, यानी कि 60 साल में रिटायर हुआ, इसको ऐसे बनाया है 60 साल में रिटायर हुआ कोई भी जज, नॉर्मल जज, और वो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बना और 5 साल के लिए वो डीआरटी में चला गया, तो 65 साल तक वो एज पूरी कर सकता है, प्रैक्टिकल उन्होंने बनाया है। इसी तरह से डीआरटी का जो चेयरमैन होता है उसके लिए इन्होंने हाई कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट रखी है, हाई कोर्ट के जज का लेवल होगा तो उसकी रिटायरमेंट होगा वो 62 साल में, हाई कोर्ट का होता है, और उसकी 67 साल कर दी, 67 कर दी इन्होंने, ताकि वो भी 5 साल का अपना टेन्योर पूरा कर सकता है। तो इस चीज़ों के बारे में, सैलरीज के बारे में, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग इसको देखिएगा। और डीआरटी जो चेयरमैन की मैंने आपको बता दी है कि 5 ईयर 62 ईयर से 67 ईयर तक रह सकता है, वो भी हो गया है। सैलरी, कंपनसेशन, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। और इसमें जो सेक्शन 17 है वो जुरिडिक्शन बताता है, इसकी पावर के बारे में एक्सप्लेन करता है, और सेक्शन 19 इज इम्पॉर्टेंट, वो थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है कि एप्लीकेशन लगेगी तो कैसे लगेगी, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। सेक्शन 19 जो है वो डीआरटी एक्ट का वर्किंग प्रोसीजर के बारे में उसमें बहुत सारा उसमें सब सेक्शन से बताया गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें एक चीज़ में नहीं ले रहा हूँ हालांकि, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो सिमिलर हैं, जो कहीं है, वो भी सब चीज़ें रिकवरी के सिमिलर चीज़ें हैं, पर डीआरटी में काम प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था, स्लो पेस ऑफ रिकवरी थी, केसेस बहुत पाइल अप थे, तभी तो ये सर्फेसी एक्ट आया कि कोर्ट का इंटरवेंशन बंद करना, इसीलिए आया था। तो ये डीआरटी भी अब थोड़ी सी पुरानी चीज़ होगी, लेकिन अभी भी चल रही है, तो चल इसलिए रही है। लिमिटेशन तब होता है जब लिमिटेशन होती है, लिमिटेशन यानी 3 ईयर लिमिटेशन, ठीक है सर। लिमिटेशन में ये रहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे होते हैं तो वो डीआरटी में ही रिकवरी के लिए डालेगा, क्योंकि सर्फेसी एक्ट में टाइम लगता है, आपको 60 दिन का नोटिस देना है, तो भी कम से कम 6 महीने का टाइम तो चाहिए उसको, 13/4 करेगा, डीएम का ऑर्डर लेगा, 6 अगर डॉक्यूमेंट अपने पास लाइव है, अपने पास लगता है 2 साल का टाइम है, 1 साल का टाइम है, तब सर्फेसी में जाएगा और उसका टाइम खत्म होने से पहले वो डीआरटी में लगा देगा, ताकि लिमिटेशन अपनी एक्सपायर नहीं हो जाए। सरफेसी एक्शन से लिमिटेशन अपनी नहीं बढ़ती है, इसमें डालने से केस में बढ़ जाती है। ये बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमको पता है कि कहाँ अटक जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, डीआरटी में डाल देते हैं कि केस को, ताकि अब उसकी जो है लिमिटेशन एक्सटेंड हो जाती है। अपील का इसका मैंने आपको बता ही दिया था, डीआरटी में 45 डेज, और उस डीआरटी में 45 डेज है, डीआरटी में 30 डेज है, और डिस्पोज ऑफ करने का 6 महीने का टाइम बताया था, 180 दिन का, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दिया गया है। डिपॉजिट आई हैव एक्सप्लेन कि डिपॉजिट करने के लिए डीआरटी में प्री कंडीशन नहीं है सर, क्योंकि वो प्री कंडीशन हटाई दी थी, मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी थी बढ़ेगा केमिकल में, लेकिन डीआरटी में अभी भी है, उसको मैंने दैट आई हैव एक्सप्लेन। लिमिटेशन के बारे में आपको बता दिया है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब टाइम भी मेरे को लगता है 8:45 बच्चे हैं, तो इसको सम अप करते हैं। तो इसमें भी वही सेम प्रोविजन है, प्रोडक्शन टेकन इन द गुड फेथ है, एक्ट टू ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये हर एक्ट जो बनता है उसमें सब में ही लिख देते हैं। हम देखते हैं कि ये पता नहीं ये क्या चीज़ नहीं आ गई, ये चीज़ें कोई नहीं आई है, सारी चीज़ें पहले से अस्तित्व में थी। जब 93 में जब बना तब भी ओवरराइडिंग इफेक्ट, एक्शन टेकन इन गुड फेथ, वही बातें आ रही हैं सर, और 2002 में भी आ रही हैं और 2016 में भी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो शुभ साहब को बहुत धन्यवाद, और आर.के. गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू, शेयर माय व्यूज विद यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सीए विकास राजवंशी जी, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन, और लोगों के कमेंट्स भी बहुत आ रहे हैं। हम तो एक रखना चाह रहे थे क्वेश्चन आंसर भी, लेकिन अब टाइम परमिट नहीं करता, तो मैं आपकी परमिशन से ना आपको ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, तो ग्रुप में अगर आपको आंसर देने में कन्वीनियंस हो तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको मेल पर भेज दूंगा क्वेश्चंस, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो, है ना जी। हाँ जी, तो with your permission we are ending the meeting now. Thank you once again for being with us and sparing your valuable time and sharing your practical feedback. Thank you very much. Thank you all. हाँ जी, okay sir, we are ending the meeting now.